کیا تم مجھ سے ایسے شخص کی بیعت کے لیے کہتے ہو جس کی نمازوں کا ٹھکانہ نہیں اور جو عیاشی میں مبتلا ہے؟ اب یزید بن معاویہ خلیفہ ہیں اور امت کو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امیر کے پاس گواہی دینا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ تاریخ میں بہت سی جنگیں ہوئیں، بہت سے بادشاہ آئے اور چلے گئے، بہت سے لشکر اٹھے اور مٹ گئے، مگر ایک واقعہ ایسا ہے جو 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی انسانیت کے ذہن اور دلوں پر ویسے ہی نقش ہے جیسے کل ہی پیش آیا ہے۔ یہ صرف ایک جنگ کی داستان نہیں بلکہ حق اور باطل، صبر اور جبر، وفا اور بے وفائی کے درمیان کھینچی گئی وہ لکیر ہے جسے قیامت تک مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ اس گھرانے کی داستان ہے جس کے در پر جبریل امین اترتے تھے۔ یہ اس نواسے کی داستان ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، اور یہ ان جانثاروں کی داستان ہے جنہوں نے پیاسے رہ کر بھی حق کا پرچم جھکنے نہ دیا۔ آئیے آج ہم تاریخ کے ان صفحوں کو پلٹتے ہیں جہاں ریت تپ رہی تھی، فرات بہہ رہا تھا، مگر وفا اپنی آخری منزل لکھ رہی تھی، جہاں ایک طرف دنیا کی طاقت تھی اور دوسری طرف حق کی صدا، جہاں سر کٹ گئے مگر اصول نہ جھکے، جہاں جسم مٹ گئے مگر پیغام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ یہ ہے وہ دردناک، عظیم اور بے مثال داستان جسے دنیا واقعہ کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ تو چلیے لے چلتے ہیں آپ کو کربلا کے اس میدان میں جہاں کی ریت آج بھی صبر، وفا اور قربانی کی داستان سناتی ہے۔ مگر واقعہ شروع کرنے سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے والے کمنٹ میں یا حسین ضرور لکھیں، اور ہمارے چینل سیدہ زیب ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے حسین تجھے سلام۔ مدینہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز اس دور میں ہوا جب 41 ہجری کے آس پاس امت ایک ایسے نازک مرحلے میں داخل ہو چکی تھی جہاں سیاسی اختلافات کھلے طور پر سامنے آ چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ کی طرف سے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی، لیکن یہ بیعت ایک ایسی زمین پر قائم تھی جس میں الگ الگ رجحان، الگ الگ جماعتیں اور کمزور اتحاد موجود تھا۔ دوسری طرف شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اداری نظام پہلے ہی مضبوط ہو چکا تھا، اور ان کے پاس ایک منتظم حکومت، منظم فوج اور ایک مضبوط سیاسی ڈھانچہ موجود تھا۔ اس صورتحال میں امت دو بڑے مرکزوں میں بنٹ چکی تھی، لیکن دونوں طرف کے بڑے لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ اگر یہ تنا تنی بڑھی تو اس کا انجام امت کے لیے بہت بھاری ہوگا۔ اسی وجہ سے دونوں جانب سے شروع ہی سے یہ کوششیں ہونے لگیں کہ کسی طرح خون خرابے سے بچتے ہوئے کوئی ایسا حل نکالا جائے جس میں امت کا اتحاد قائم رہ سکے۔ کوفہ کی فضا میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگوں کی وفاداری موجود تھی، لیکن اسی وقت یہ بھی صاف تھا کہ وہاں کی سیاسی حالت ایک جیسی نہیں تھی۔ کچھ لوگ پورے اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ تھے، جبکہ کچھ جماعتیں ایسی تھیں جن کا رجحان حالات کے ساتھ بدل سکتا تھا۔ اسی وجہ سے کئی بڑے صلاح کار اور قریبی لوگ امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر یہ بات رکھتے رہے کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو کوفہ کی پوری فوج ایک ساخت مورچے پر قائم نہیں رہ پائے گی، اور اس سے امت میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی پیغامات بھیجے جانے لگے جن میں یہ بات صاف تھی کہ امت کو ایک ہی اداری مرکز کے تحت لانے کی ضرورت ہے، اور اگر صلح کا راستہ اپنایا جائے تو اسے بہتر سمجھا جائے گا۔ ان پیغامات میں سختی سے زیادہ حکمت اور سیاسی سمجھ کا رنگ تھا، جس میں یہ احساس دلایا جا رہا تھا کہ لمبا اختلاف امت کے لیے سکون کی بجائے فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی مرحلے پر امام حسن رضی اللہ عنہ نے حالات کا بہت گہرائی سے مشاہدہ کیا اور امت کے مستقبل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے سامنے ایک طرف امت کا اتحاد تھا اور دوسری طرف ایک ایسی جنگ تھی جس کا انجام اور بھی بکھراؤ اور خون خرابہ ہو سکتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کوفہ کی اندرونی حالت ایک جیسی نہیں ہے، اور اگر جنگ شروع ہوئی تو شاید وہ مضبوطی پیدا نہ ہو سکے جو ایک مکمل فیصلے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے امت کی بھلائی کو اپنے سیاسی حق سے اوپر رکھا اور صلح کی طرف جھکاؤ اپنایا۔ یہ کوئی کمزوری کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی حکمت تھی جس میں یہ سمجھ موجود تھی کہ امت کو بچانا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی دوران دونوں طرف کے درمیان شرطوں پر بات چیت شروع ہوئی، جس میں اتحاد، خون کا بچاؤ اور سیاسی تسلیم کا مسئلہ سب سے اہم تھا۔ آخرکار 41 ہجری کے اسی دور میں وہ تاریخی صلح ہوئی جس نے امت کی سیاست کا رخ بدل دیا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت کو حضرت امیر معاویہ
रजी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दिया ताकि उम्मत एक बड़े फितने और लंबे सियासी टकराव से बच सके। इस फैसले के पीछे उनकी सोच ये थी कि हुकूमत से ज्यादा अहम उम्मत का इत्तेहाद और दीन की हिफाजत है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने इस सुलह को कबूल किया और पूरे इलाके को एक इदारी मरकज के तहत लाने की तरफ कदम बढ़ाया। इस सुलह ने उस दौर में एक बड़ा सियासी सुकून पैदा किया और उम्मत को एक ऐसे मरहले में दाखिल किया जहां इख्तिलाफ की जगह इदारी निज़ाम की तामीर शुरू हुई। 41 हिजरी में इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान सुलह होने के बाद उम्मत एक ऐसे दौर में दाखिल हुई जिसे बाद के मुआरिखीन ने आम तौर पर आमुल जमात यानी इत्तेहाद का साल कहा। कई बरसों से चले आ रहे सियासी इख्तिलाफात के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इस्लामी आलम का एक बड़ा हिस्सा एक ही इदारी निज़ाम के तहत जमा हो गया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने दिमिश्क को अपना इदारी मरकज बनाए रखा और रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में अमन, इंतजाम और मुआमलात को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी। दूसरी तरफ इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु मदीना में क़याम पजीर रहे, जहां उनका वक्त इबादत, तालीम, इस्लाह और उम्मत की रहनुमाई में गुजरता था। इस पूरे दौर में अहले बैत का वक़ार और मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में अपनी जगह पर बरकरार रही। उम्मत के बहुत से अफराद ये महसूस कर रहे थे कि लंबे फितनों के बाद अब एक सुकून का दौर आया है, लेकिन तारीख के पर्दे के पीछे कुछ ऐसे मसाइल भी मौजूद थे जो आने वाले बरसों में एक नई बहस की सूरत इख्तियार करने वाले थे। यही वजह थी कि ज़ाहिरी अमन के बावजूद अहले इल्म और सियासी फहम रखने वाले अफराद आने वाले ज़माने को गहरी निगाह से देख रहे थे। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का दौर तवील रहा और इस दौरान रियासत की सरहदें भी वसीअ हुईं, इदारी ढांचा भी मजबूत हुआ और कई इलाकों में नए इंतजामी उसूल नाफिज किए गए। मगर वक्त गुजरने के साथ एक अहम सवाल धीरे धीरे सामने आने लगा कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के बाद उम्मत की रहनुमाई किसके हाथ में होगी। इससे पहले खिलाफत का मामला मशवरे, बैत और अहले राय की तायद से तय होता आया था, इसलिए बहुत से लोग इस मसले को बड़ी अहमियत से देख रहे थे। इसी दौरान हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की जानिब से अपने फर्जंद यजीद के लिए बैत लेने का सिलसिला शुरू हुआ। उनके नजदीक इसकी एक वजह ये थी कि उम्मत दोबारा किसी बड़े इख्तिलाफ और सियासी टकराव में मुब्तला न हो जाए और रहनुमाई का मामला पहले ही तय कर दिया जाए। मगर दूसरी जानिब कुछ बड़े सहाबा और सहाबा के फर्जंदों को इस मसले पर तम्मुल था। उनका ख्याल था कि इतने अहम मामले में उम्मत की राय और मशवरे को बुनियादी हैसियत हासिल रहनी चाहिए। यही वो मकाम था जहां से एक नई बहस का आगाज हुआ जो आगे चलकर बहुत अहम साबित होने वाली थी। जब यजीद के लिए बैत का मसला खुलकर सामने आया तो मुख्तलिफ शहरों में इस पर अलग अलग रवैये दिखाई दिए। बहुत से इलाकों में हुकूमती अमला और उमरा ने बैत कर ली, मगर कुछ बुजुर्ग और नुमाया शख्सियात ने फौरी तौर पर अपनी हामी नहीं भरी। इनमें इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु जैसी अहम हस्तियां शामिल थीं, जिनकी अपनी सियासी और इल्मी वजाहत थी। इन हजरात का इख्तिलाफ बगावत या फसाद की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि मसले की नौइयत और उसके उसूलों से मुताल्लिक था। दूसरी तरफ हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु अपने नजरिए के मुताबिक उम्मत में इस्तेहकाम और तसलसल पैदा करना चाहते थे। इस पूरे दौर में कई मुलाकातें, कई मशवरे और कई गुफ्तगुएं हुई, मगर मामला पूरी तरह एक राय पर जमा न हो सका। यही वजह थी कि ये मसला जाहिरी तौर पर शांत रहने के बावजूद लोगों की निगाहों का मरकज बना रहा और हर कोई देख रहा था कि आगे चलकर इसकी सूरत क्या इख्तियार करेगी। सन 60 हिजरी का आगाज हुआ तो इस्लामी आलम एक नए मोड़ के करीब पहुंच चुका था। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की सेहत कमजोर होने लगी और फिर वो वक्त भी आ गया जब उनका इंतकाल हो गया। उनकी वफात की खबर फैलते ही पूरे आलम इस्लाम में एक नई हलचल पैदा हो गई, क्योंकि अब वो सवाल सामने आ चुका था जिसकी चर्चा कई बरसों से हो रही थी। दिमिश्क में यजीद ने हुकूमत की बागडोर संभाली और अपनी खिलाफत का ऐलान किया। साथ ही मुख्तलिफ सूबों के हुक्काम को पैगामात रवाना किए गए कि लोगों से यजीद के लिए बैत ली जाए। बाहर से देखने पर ऐसा महसूस होता था कि हुकूमत का इंतकाल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन हकीकत में अब कहानी का सबसे नाजुक और अहम बाब शुरू होने वाला था। मदीना में मौजूद इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु
हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरी नुमायां शख्सियात की तरफ सबकी निगाहें उठ चुकी थीं। लोग इंतजार कर रहे थे कि अब इन हजरात का मौकिफ क्या होगा और उम्मत का सियासी मंजरनामा किस जानिब रुख इख्तियार करेगा। यहीं से करबला के सफर की असली दास्तान का अगला बाब शुरू होता है। यजीद की खिलाफत के ऐलान के बाद सबसे पहला बड़ा और अहम कदम ये हुआ कि उसने अपने इदारी निज़ाम को मजबूत करने के लिए पूरे इस्लामी मुमालिक में अपने वकील और गवर्नर भेजे। दिमिश्क से हुक्म जारी हुआ कि हर बड़े शहर में मौजूद नुमायां शख्सियात, खास तौर पर सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम और उनके अफराद से बैत ली जाए ताकि हुकूमत की बुनियाद एक ही मरकज पर जमा हो सके। इसी सिलसिले में मदीना में भी उसका गवर्नर वलीद इब्न उतबा भेजा गया, जिसने आते ही ये पैगाम दिया, अब यजीद बिन मुआविया खलीफा हैं और उम्मत को उनके हाथ पर बैत करनी चाहिए। इस पैगाम के आते ही मदीना का माहौल एकदम बदल गया और मस्जिद नबी से लेकर हर मोहल्ले तक एक सियासी सन्नाटा और फिक्र की लहर दौड़ गई। उस वक्त मदीना में इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु और कुछ और नुमायां बुजुर्ग मौजूद थे, जो इस पूरे मसले को सिर्फ सियासी नहीं बल्कि दीन और उम्मत की जिम्मेदारी के तौर पर देख रहे थे। गवर्नर की तरफ से दबाव धीरे धीरे बढ़ाया जाने लगा, लेकिन शुरुआती मरहले पर सीधे टकराव की बजाय माहौल को समझने और नापने का सिलसिला भी जारी रहा। इसी दौरान इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरे बड़े सहाबा के दरमियान ये चर्चा शुरू हुई कि यजीद के बारे में मौजूदा जानकारी और हालात को देखते हुए बैत का क्या हुक्म और सूरत बनती है। उस वक्त कई लोग ये जानते थे कि यजीद के बारे में आमतौर पर यह बात मशहूर हो चुकी थी कि वो ऐशो इशरत की तरफ माइल है, नमाजों में गफलत करता है और सियासी मुआमलात में उसकी सख्ती और लापरवाही की बातें लोगों तक पहुंच चुकी थीं। हालांकि एक अहम हकीकत ये भी थी कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु के जमाने में यजीद की ये तमाम बातें इस तरह खुलकर सामने नहीं आई थीं और बहुत से लोग उसे उस वक्त एक मुमकिना सियासी वारिस के तौर पर ही जानते थे। मगर बाद के हालात और उसके शुरुआती रवैये ने कई बुजुर्ग सहाबा के दिलों में ये फिक्र पैदा कर दी थी कि क्या ऐसे शख्स के हाथ पर उम्मत की रहनुमाई की बैयत दी जा सकती है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का मौक़िफ़ इसी फिक्र पर मबनी था कि खिलाफत सिर्फ नाम या विरासत का मसला नहीं बल्कि दीन की हिफाजत, अदल और उम्मत की भलाई की अमानत है। इसी वजह से उन्होंने जल्दबाजी में बैत कबूल करने के बजाय हालात को पूरी गहराई से समझने को तरजीह दी। जैसे जैसे गवर्नर का दबाव बढ़ता गया वैसे वैसे मदीना के अंदर माहौल और ज्यादा संजीदा होता गया। हुकूमती नुमाइंदे की तरफ से ये बात साफ की जा रही थी कि अब किसी भी तरह की देरी या इनकार को सियासी बगावत या इख्तिलाफ समझा जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनके साथ मौजूद बुजुर्ग हजरात इस बात पर गौर कर रहे थे कि उम्मत को किसी ऐसे रास्ते पर नहीं डाला जा सकता जहां दीन के उसूलों पर सवाल उठें। इसी दौरान हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु जैसे सहाबी भी इस मसले पर अपने तम्मुल और गहराई से सोच को जाहिर कर रहे थे कि जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला न हो जाए जिसका असर आने वाली नस्लों पर पड़े। दूसरी तरफ यजीद को सबसे ज्यादा फिक्र किसी बाहरी दुश्मन की नहीं बल्कि इस बात की थी कि मदीना में मौजूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और बड़े सहाबा के घरानों का रवैया क्या होगा। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरी नुमायां शख्सियात उसकी बैत से इनकार कर दें तो मुसलमानों का एक बड़ा तबका भी उनके मौक़िफ़ की तरफ मुतवज्जह हो सकता है। इसी वजह से उसने दिमिश्क से मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा के नाम पैगाम रवाना किया गया। उस पैगाम का लब्बे लुभाब ये था कि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरी अहम शख्सियात को बुलाया जाए और उनसे फौरन बैत ली जाए। रात का वक्त था, मदीना की फजा खामोश थी, लेकिन हुकूमती महल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी मौजूद थी। पैगाम मिलते ही गवर्नर ने देर करना मुनासिब न समझा और फौरन कासिद रवाना किए। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को बुलावे की खबर मिली तो उन्होंने हालात की नज़ाकत को फौरन भांप लिया। जब गवर्नर की मजलिस में यजीद की बैत का मसला पेश किया गया तो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़ी संजीदगी और वक़ार के साथ जवाब दिया, क्या तुम मुझसे ऐसे शख्स की बैत के लिए कहते हो जिसकी नमाजों का ठिकाना नहीं और जो अय्याशी में मुब्तला है? तारीखी रिवायतों में मशहूर है कि उन्होंने यजीद की शख्सियत और उसके तौर तरीकों पर एतराज़ किया
और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खिलाफत जैसी आज़ीम अमानत सिर्फ ताकत या विरासत का मसला नहीं, बल्कि दीन, अदल और उम्मत की रहनुमाई का मसला है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे जैसा उसके जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये अल्फाज उस दौर की पूरी कशमकश को बयान कर रहे थे। मजलिस में मौजूद लोग समझ गए कि मामला आसान नहीं रहने वाला। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने किसी हंगामे या तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि अपना मौक़िफ़ बयान करके वहां से रवाना हो गए। उस रात मदीना की फ़ज़ा पहले जैसी नहीं रही। अब हर तरफ एक ही चर्चा थी कि अहले बैत के सरबराह ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है। यजीद की बैत से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के इनकार की खबर जब दिमिश्क पहुंची तो हुकूमती हलकों में बेचैनी फैल गई। यजीद अच्छी तरह जानता था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु कोई मामूली शख्सियत नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिगरगोशाए बतूल और उम्मत के दिलों में बसने वाले आज़ीम रहनुमा हैं। उसे ये अंदेशा था कि अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसकी बैत कबूल न की तो मुसलमानों का एक बड़ा तबका भी उनके मौक़िफ़ की जानिब मुतवज्जह होगा। इसी फिक्र के तहत मदीना के गवर्नर पर दबाव बढ़ाया गया कि किसी भी सूरत में बैत का मसला फौरन तय किया जाए, चाहे सख्ती क्यों न करनी पड़े। मदीना की फ़ज़ा में एक अजीब सा सन्नाटा तारी था। लोग खुलकर कुछ न कहते थे, मगर हर दिल में बेचैनी मौजूद थी। गवर्नर खुद भी एक सख्त कशमकश का शिकार था। एक जानिब हुकूमत का हुक्म था और दूसरी जानिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खानदान। आखिरकार उसने दोबारा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलवाया। जब मुलाकात हुई तो उसने बड़े अदब और एहतराम के साथ अपनी मजबूरी बयान की। उसने अर्ज किया कि हालात उसकी पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से लगातार दबाव बढ़ रहा है और अगर वो हुक्म की तामील न करे तो खुद उसकी जान और ओहदा दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन मैं खानदान रसूल पर सख्ती नहीं कर सकता, लिहाजा आप ही इसका कुछ हल बताएं। उसकी गुफ्तगू में सख्ती नहीं बल्कि परेशानी और बेबसी झलक रही थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूरी तवज्जो के साथ उसकी बातें सुनी। उनके चेहरे पर न गुस्से के आसार थे और न ही किसी तरह की परेशानी, बल्कि हमेशा की तरह वक़ार, सब्र और इत्मीनान नजर आ रहा था। उन्होंने फरमाया कि वो किसी दबाव, खौफ या दुनियावी मसलहत की बिना पर अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही उनका मकसद उम्मत को किसी नए फितने या खून खराबे में मुब्तला करना भी नहीं है। फिर कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने ऐसा फैसला बयान किया जिसने आने वाली तारीख का रुख बदल दिया। उन्होंने फरमाया कि अगर मदीना में उनका क़याम हालात को और पेचीदा बना रहा है तो वो खुद मदीना छोड़ देंगे, ताकि न हरम नबी की हुर्मत मुतासिर हो और न मुसलमानों के दरमियान टकराव पैदा हो। ये अल्फाज सुनकर गवर्नर भी कुछ देर खामोश रह गया, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके सामने बैठी हुई शख्सियत कोई सियासी फायदे के लिए नहीं, बल्कि दीन, हक और उम्मत की सलामती के लिए फैसला कर रही है। इसी फैसले के साथ मदीना से रुखसती की तैयारियों का आगाज हुआ और तारीख एक ऐसे सफर की जानिब बढ़ने लगी जिसका हर मरहला सदियों तक याद रखा जाने वाला था। उस रात मदीना की फ़ज़ा कुछ और ही थी। बाहर सब कुछ वैसा ही था जैसा बरसों से था, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिल पर एक ऐसा बोझ था जिसे लफ्ज़ों में बयान करना आसान नहीं। गवर्नर से मुलाकात के बाद जब आप अपने घर तशरीफ़ लाए तो चेहरा मुबारक पर फिक्र के आसार नुमायां थे। अहले बैत समझ चुके थे कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। जब सब अफराद जमा हुए तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बड़े सुकून और वक़ार के साथ फरमाया कि अब मदीना में क़याम मुनासिब नज़र नहीं आता। यजीद की जानिब से दबाव बढ़ता जाएगा और मुझे अंदेशा है कि अगर मैं यहीं ठहरा रहा तो मामला ऐसी जानिब जा सकता है जहां हरम रसूल की पाक फ़ज़ा भी मुतासिर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मदीना में किसी तरह का खून खराबे हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का अमन मुतासिर हो। इसलिए मेरा इरादा है कि हम यहाँ से रुखसत हो जाएं। ये अल्फाज सुनकर घर में खामोशी छा गई। कुछ लम्हों तक कोई कुछ न बोला। फिर अहले खानदान की जानिब से अर्ज किया गया, ना अगर मदीना छोड़ना ही है तो फिर कहाँ जाया जाएगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ना हम मक्का जाएंगे, बैतुल्लाह के साए में क़याम करेंगे। जब तक अल्लाह ताला कोई बेहतर राह ज़ाहिर फरमाए वहीं ठहरेंगे। मगर ये फैसला ज़बान से बयान करना जितना आसान था, दिल पर उठने वाला दर्द उससे कहीं ज्यादा गहरा था, क्योंकि ये कोई आम शहर न था जिसे छोड़ा जा रहा था, बल्कि ये वो मुक़द्दस सरजमीन थी जहां आपकी आंख खुली, जहां बचपन गुजरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की छाँव नसीब हुई
और जहां हर गली किसी याद का अमीन थी। जब रुखसती का इरादा पुख्ता हो गया तो रात की तन्हाई में इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की निगाहें मदीना की फजाओं में खो गईं। शायद उस वक्त दिल के पर्दे पर एक साथ कितनी ही यादें उभर रही थीं। यही तो वो शहर था जहां नाना जान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद का सुकून नसीब हुआ था। यही वो गलियां थीं जहां आपकी छोटी छोटी कदमगाहें मौजूद थीं। यही वो मकान था जहां सैयदा फातिमतुल ज़हरा रजी अल्लाहु अन्हा की शफकत और मोहब्बत का साया मिला था। यही वो आंगन था जहां हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की नसीहतें गूंजती थीं। और यही वो घर था जिसके दरवाजे पर कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, अपने नवासों को सीने से लगाते और उनके लिए दुआएं फरमाते थे। आज उसी शहर से जुदाई का वक्त आ पहुंचा था। जाहिर में सब्र था, वक़ार था, रज़ा बिल क़ज़ा का जज्बा था, मगर दिल के अंदर उठने वाली कैफियत को अल्लाह ताला के सिवा कौन जान सकता था। एक जानिब नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर था और दूसरी जानिब दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी। एक जानिब यादें थीं और दूसरी जानिब हक का रास्ता। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने यादों को नहीं बल्कि हक को चुना, मगर ये फैसला करते वक्त दिल पर जो गुजर रही थी उसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है जिसने कभी अपनी सबसे अजीज चीज को अल्लाह की रजा के लिए छोड़ा हो। रात अपनी तारीकी की चादर ओढ़े हुए थी, मगर मदीना की फजाओं में एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी। ऐसे में हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाहु अन्हु अपने नाना जान, दोनों जहानों के आकाओं मौला हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ाए अनवर की जानिब रवाना हुए। जब बारगाह रसालत में हाजिरी नसीब हुई तो दिल का सब्र जैसे टूटने लगा। आपने अदब के साथ सलाम अर्ज किया, फिर कुछ देर खामोशी के आलम में रौज़ाए मुबारक को जी भर कर देखते रहे। दिल में यादों का एक तूफान बरपा था। यही तो वो मुक़द्दस मकाम था जहां हर गम को तसल्ली मिला करती है, जहां हर बेचैनी को सुकून नसीब होता है। फिर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें नम हो गईं और आपने दर्द भरी आवाज में सलाम पेश करते हुए अर्ज किया, या अब्बा, या नाना जान, आपका हुसैन आज एक भारी दिल के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हुआ है। मैं अपने बच्चों और अहले बैत को लेकर मदीना से हिजरत करने जा रहा हूँ। मदीना अब आपके हुसैन के लिए तंग कर दिया गया है। हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि यहाँ क़याम करना दीन और उम्मत दोनों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ये अल्फाज जबान से निकल रहे थे और अश्क रुखसारों पर बह रहे थे। उस लम्हे की कैफियत क्या रही होगी, इसका तसव्वुर भी दिल को हिला देता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नवासा जिसे कभी अपने मुबारक कंधों पर बिठाया गया, जिसे सीने से लगाकर बोसे दिए गए, आज उसी बारगाह में जुदाई और दर्द की दास्तान सुना रहा था। उस मंजर को न कोई तारीख पूरी तरह बयान कर सकती है और न किसी कलम में इतनी ताकत है कि उसका हक अदा कर सके। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु देर तक अपने दिल का हाल अर्ज करते रहे। कभी मदीना की यादों का तज़किरा करते, कभी उम्मत के हालात का, और कभी अपने सामने मौजूद उस कठिन राह का जो अब उनका इंतजार कर रही थी। रौज़ाए अक़दस की फ़ज़ा अश्कों और मुनाज़ात से भीग चुकी थी। ऐसा महसूस होता था जैसे एक तरफ नवासाए रसूल अपना सारा दर्द अपनी ज़बान से बयान करते हों और दूसरी तरफ रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और तवज्जो उनके दिल के ज़ख्मों पर मरहम रख रही हो। उस रात रौज़ाए अनवर के करीब एक ऐसा मंजर था जिसमें दर्द भी था, मोहब्बत भी थी, जुदाई भी थी और रज़ा बिल क़ज़ा का वो आज़ीम जज्बा भी था जो सिर्फ अहले बैत का हिस्सा था। ऐसा मालूम होता था कि मदीना की हवाएं भी ठहर गई हैं, फ़ज़ाएं भी गमज़दा हैं और हर ज़र्रा अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की इस दर्दनाक रुखसती का गवाह बन रहा है। रौज़ाए अनवर से रुखसत होने के बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की कदमगाहें जन्नतुल बकी की जानिब बढ़ीं। वहाँ वो यादें आराम फरमा थीं जिनसे आपकी जिंदगी महकती थी। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाहु अन्हा का तसव्वुर आते ही दिल और ज्यादा रकीक हो गया। जब आप अपनी वालिदा माजिदा की याद में ठहरे तो जुदाई का दर्द और भी गहरा हो गया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपनी प्यारी अम्मा जान के रोज़ाए मुबारक पर लिपट गए और अश्कों की बारिश करते हुए अपने दिल का हाल बयान करने लगे। उन्होंने दुआ की, सलाम पेश किया
और दर्द भरी आवाज में अर्ज किया कि आपका हुसैन मदीना किसी दुनियावी मसलहत की बिना पर नहीं छोड़ रहा, बल्कि इसलिए रुखसत हो रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर फितने और खून खराबे से महफूज रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मुसलमानों का खून बहे, न मैं चाहता हूँ कि मदीना की हुर्मत पर कोई आंच आए, इसलिए अब हिजरत ही वो राह है जिसे इख्तियार करना पड़ेगा। इसी रूहानी आलम में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा की ममता किसी अनदेखे नूर की शक्ल में वहाँ मौजूद हो। वो जाहिर आंखों से नजर नहीं आ रही थीं, मगर उनकी ममता हर लम्हा दिल को घेरे हुए थी। एक तरफ बेटा जुदाई के दर्द में तड़प रहा था, तो दूसरी तरफ माँ की रूहानी कैफियत में भी एक ऐसी बेचैनी थी जैसे हर सांस अपने बेटे के गम में डूबी हुई हो। कुछ देर बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, मुझे इजाजत दी जाए जिससे मैं रसूल अल्लाह के इस शहर को पामाल होने से बचा लूं। वालिदा मोहतरमा की जानिब से इजाजत मिलते ही आपने वालिदा मोहतरमा अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को सलाम अर्ज किया, दुआ की और कुछ देर खामोशी के आलम में बैठे रहे। उस लम्हे ऐसा महसूस होता था जैसे यादों का हर दरवाजा खुल गया हो और हर याद रुखसती को और मुश्किल बना रही हो। मगर हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का सर सब्र से झुका हुआ था, दिल अल्लाह की रजा पर मुतमिन था और कदम हक की राह पर बढ़ने के लिए तैयार थे। और फिर बोझिल दिल, नम आँखों और भारी कदमों के साथ आप वहाँ से रुखसत हुए, जबकि मदीना की फजाएं खुद इस जुदाई पर गमगीन मालूम होती थीं। सुबह का वक्त था, फजर की सन्नाटी फजा में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। रिवायतों के मुताबिक रजब का महीना था, जब साल 60 हिजरी का आखिरी दौर चल रहा था और मदीना की फजा में सियासी बेचैनी धीरे धीरे गहराती जा रही थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का काफिला तैयार हो चुका था। अहले बैत और उनके साथ मौजूद अफराद धीरे धीरे ऊँटों पर सवार हो रहे थे। सबसे आगे खुद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने ऊँट पर सवार थे और उनके चेहरे पर सब्र के साथ साथ एक गहरा रूहानी गम भी झलक रहा था। उनके साथ हजरत अब्बास इब्न अली, हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना और अहले बैत के दूसरे अफराद मौजूद थे। हर शख्स की आंखें अश्कों से भरी हुई थीं, मगर सब अपने रब की रजा के आगे सर झुकाए हुए थे। ऊंट धीरे धीरे मदीना की गलियों में आगे बढ़ रहे थे और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे जमीन भी इस जुदाई को महसूस कर रही हो। मदीना की वो गलियां आज खामोश थीं, मगर हर दीवार, हर रास्ता और हर मोड़ यादों से भरा हुआ था। ये वही मदीना था जहां दोनों जहानों के आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक कदमों से चलते थे। ये वही मदीना था जहां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कुरान की आयतें सुनाया करते थे और दिलों को नूर से भर देते थे। ये वही सरज़में थी जहां जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ करता था और रहमतों की बारिश होती थी। आज वही शहर अपने सबसे आजीज घराने की रुखसत को देख रहा था। हर आंख नम थी, हर दिल बोझिल था और हर सांस में एक अजीब सा दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे मदीना की फजाएं खुद इस जुदाई पर रो रही हों। काफिला जब आगे बढ़ रहा था तो हर शख्स अपने पीछे छोड़े हुए हर लम्हे को याद कर रहा था। कोई बचपन की यादों में खोया हुआ था, कोई उन दरों को देख रहा था जहां कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे। हर किसी के दिल में ये एहसास था कि वो सिर्फ एक शहर नहीं छोड़ रहे, बल्कि एक ऐसी जमीन से जुदा हो रहे हैं जो नबुव्वत के नूर से रोशन रही है। ऊँटों की धीमी चाल के साथ साथ सिसकियों की आवाज भी हवा में घुल गई थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़ते जा रहे थे, मगर उनका दिल पीछे हर उस याद में अटका हुआ था जो इस शहर से जुड़ी थी। मगर इस दर्द के बीच सब्र और रजा का एक ऐसा नूर भी था जो हर चेहरे पर झलक रहा था। हर शख्स जानता था कि ये सफर आसान नहीं, मगर अल्लाह की रजा के लिए उठाया गया है। मदीना की गलियों से निकलता हुआ यह काफिला सिर्फ एक हिजरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रूहानी दास्तान की शुरुआत थी जिसमें मोहब्बत, जुदाई, सब्र और फर्ज सब एक साथ चल रहे थे। और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे आसमान भी इस काफिले को दुआ दे रहा हो कि ये सफर अमन और हिकमत के साथ मुकम्मल हो। कई दिनों के सफर के बाद आखिर मदीना की मुबारक सरजमीन पीछे छूट गई और तारीखी रिवायतों के मुताबिक सन 60 हिजरी 3 शाबान के करीब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए। जब आपका मुबारक काफिला हरम की सरजमीन में दाखिल हुआ तो दिलों पर छाया हुआ बोझ कुछ हल्का जरूर हुआ, मगर मदीना की जुदाई का दर्द अब भी ताज़ा था। अहले बैत के अफराद की निगाहें बार बार पीछे छूट जाने वाले मदीना की जानिब उठ जाती थीं। कोई खामोश था, कोई अश्क पोंछ रहा था और कोई अपने दिल में यादों का तूफान समेटे बैठा था। आखिर वो मदीना कोई आम शहर न था,
बल्कि जहां इस्लाम ने अपनी मुकम्मल शान के साथ परवान चढ़ा और जहां अहले बैत की अनगिनत यादें बसी हुई थीं। मक्का पहुंचकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले बैतुल्लाह की हाजिरी का शरफ हासिल किया। काबा मुशर्रफा पर निगाह पड़ते ही दिल की कैफियत बदल गई और अश्क बेख्तियार आंखों से जारी हो गए। आपने तवाफ किया, दुआएं की और अपने रब की बारगाह में लंबी मुनाजात अर्ज की। इसी दौरान जैसे ही मक्का में ये खबर फैली कि नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले आए हैं, तो हर तरफ से लोग आपकी जियारत के लिए उमड़ने लगे। कोई यमन से आया, कोई हिजाज के करीबी इलाकों से, कोई दूर दराज अरब के कबीलों से सिर्फ इस शौक में चला आया कि एक बार नवासाए रसूल की जियारत नसीब हो जाए। लोग जब आपके मुबारक चेहरे को देखते तो उन्हें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर होने लगता। आपकी चाल, आपका वकार, आपका नूरानी चेहरा और आपकी मोहब्बत भरी निगाहें लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिला देती थीं। लोग बड़े अदब के साथ आगे बढ़ते, सलाम अर्ज करते और आपके मुबारक हाथों को बोसा देते। यही वो मुबारक हाथ थे जिन्हें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थामा था, जिन्हें अपने लब्बे मुबारक से बोसे दिए थे और जिनके बारे में फरमाया था कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, कैसी खुशनसीबी थी उन लोगों की जिन्हें नवासाए रसूल की जियारत नसीब हो रही थी। लोगों की आंखें खुशी और मोहब्बत से नम हो जाती और दिलों में एक रूहानी कैफियत उतर आती। ऐसा महसूस होता था जैसे मक्का की फजा खुद इस नूरानी मेहमान के आने से महक उठी हो। दूसरी जानिब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अपना ज्यादा वक्त इबादत, तिलावत, दुआ और उम्मत के हालात पर गौर व फिक्र में गुजारते रहे। जाहिर तौर पर आप मक्का में अमन के साथ मौजूद थे, लेकिन दिल जानता था कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। मदीना की जुदाई का दर्द सीने में मौजूद था और उम्मत के मुस्तकबिल की फिक्र हर वक्त साथ चल रही थी। मक्का मुकर्रमा में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के क़याम को अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि उनकी तशरीफ आवरी की खबर अरब के मुख्तलिफ इलाकों की तरह कोफा भी पहुंच गई। कोफा कोई आम शहर न था, बल्कि वही सरजमें थी जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के आखिरी दौर में दारुल खिलाफत रह चुकी थी। वहाँ अब भी ऐसे बहुत से अफराद मौजूद थे जिनके दिल अहले बैत की मोहब्बत से सरशार थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि नवासाए रसूल हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु ने यजीद की बैत कबूल नहीं की और मदीना से हिजरत करके मक्का तशरीफ ले आए हैं, तो कोफा की महफिलों, मसाजिद और इज्तिमाओं में इसी मौजू पर गुफ्तगू होने लगी। लोग आपस में कहते थे कि आज उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की जरूरत है और अगर हुसैन रजी अल्लाह अन्हु क़ियादत फरमाएं तो हालात का रुख बदल सकता है। धीरे धीरे ये गुफ्तगू एक जज्बे में तब्दील होने लगी। कोफा के बुजुर्ग और असर व रसूख रखने वाले अफराद जमा होने लगे और मशवरे होने लगे कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु तक अपना पैगाम पहुंचाया जाए। उस वक्त कोफा के लोगों के दिलों में एक उम्मीद जाग रही थी कि शायद नवासाए रसूल उनकी दावत कबूल फरमा लें और एक बार फिर उम्मत को ऐसा मरकज हासिल हो जाए जिसके इर्द गिर्द लोग जमा हो सकें। इसी बेचैनी ने आगे चलकर एक ऐसे सिलसिले को जन्म दिया जिसने तारीख का रुख बदल कर रख दिया। आखिरकार कोफा के सरकर्दा अफराद ने फैसला किया कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में पहला खत रवाना किया जाए। चुनांचे कुछ मुअत्तबर अफराद ने मिलकर एक खत तहरीर किया जिसमें अर्ज किया गया कि कोफा के लोग आपके मुंतजिर हैं। हमारे पास कोई ऐसा इमाम नहीं जिसके इर्द गिर्द हम जमा हों, लिहाजा आप तशरीफ लाइए ताकि हम आपके हाथ पर बैत करें और आपको अपना रहनुमा तस्लीम करें। ये खत जब मक्का पहुंचा तो उसके कुछ ही रोज बाद दूसरा खत आया, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर आने वाला कासिद अपने साथ नई दावत और नई दरख्वास्त लेकर आता। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु हर पैगाम को गौर से सुनते, मगर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं फरमाते थे। आपकी निगाह सिर्फ जज्बाती नारों पर नहीं थी, बल्कि आप हालात की हकीकत को समझना चाहते थे। दूसरी जानिब कोफा के लोग समझ रहे थे कि अगर लगातार पैगाम भेजे जाएं, तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को उनके इखलास और जज्बे का यकीन हो जाएगा। इसी वजह से खुतूत का सिलसिला रुकने के बजाय और तेज हो गया। हर आने वाला वफ्द यही अर्ज करता कि अब देर न की जाए, कोफा के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं और लोग आपकी आमद के मुंतजिर बैठे हैं। कुछ ही अरसे में हालात यहाँ तक पहुँच गए कि मक्का में इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में आने वाले खतूत की तादाद सैकड़ों से बढ़कर हजारों तक पहुँच गई। तारीखी रिवायतों में आता है कि मुख्तलिफ कबीलों, घरानों और जमातों की जानिब से इतने खतूत आए कि उनका एक ढेर लग गया। हर खत में तकरीबन एक ही पैगाम होता था, हम आपके साथ हैं, आप तशरीफ लाइए
हम आपके हाथ पर बैयत करेंगे। कई खतूत पर दर्जनों अफराद के दस्तखत होते, जबकि कुछ पर पूरे कबीलों की तायद दर्ज होती। कूफा से आने वाले कासिद बार बार अर्ज करते कि शहर का बहुत बड़ा तबका आपका मुंतजिर है और आपकी आमद के लिए बेकरार बैठा है। ये मंजर ऐसा था कि देखने वाला हैरत में पड़ जाए। एक जानिब मक्का में नवासाए रसूल की खिदमत में खतूत का अंबार लग रहा था, दूसरी जानिब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु पूरे वकार, तदब्बर और एहतियात के साथ हर पहलू पर गौर फरमा रहे थे। आप अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ खतूत और दावों की बुनियाद पर इतना बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता। यही वजह थी कि आपने फौरन रवानगी का इरादा नहीं फरमाया, बल्कि पहले हालात की तहकीक और तस्दीक का रास्ता इख्तियार किया। खतूत उनकी ये खबर सहाबाए किराम और बुजुर्गाने दीन तक भी पहुंच गई। वो सब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर होने लगे और अपनी मोहब्बत, खुलूस और फिक्र का इजहार करते हुए अर्ज करने लगे कि कूफा वालों के वादों पर एतमाद करने में एहतियात फरमाई जाए। उन्हीं दिनों हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु कई मरतबा हाजिर हुए। वो अहवाले कूफा से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने अदब के साथ अर्ज किया कि कूफा का मिजाज बहुत जल्दी बदल जाता है। आज जो लोग खतूत लिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि कल भी उसी इरादे पर बाकी रहें। उन्होंने अर्ज किया कि अगर कूफा वाले वाकई सादिक हैं तो पहले अपने शहर में हालात मुकम्मल तौर पर आपके हक में हमवार कर लें, फिर आप तशरीफ ले जाएं। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु भी मुलाकात के लिए आए। उन्होंने बड़े दर्द और मोहब्बत के साथ अर्ज किया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। उम्मत की निगाहें आप पर लगी हुई हैं, इसलिए अपनी जान और अहले बैत की सलामती को पेश नजर रखिए। इन नसीहतों के पीछे किसी दुनियावी मसलहत से ज्यादा मोहब्बत और खैर ख्वाही मौजूद थी। हर सहाबी की आंखों में फिक्र थी, हर दिल में अंदेशा था और हर जबान पर यही दुआ थी कि अल्लाह ताला इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को बेहतरीन फैसले की तौफीक अता फरमाए। दूसरी जानिब हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु भी बराबर मुलाकात करते रहे। मक्का में उनकी मौजूदगी की वजह से अक्सर दोनों बुजुर्ग शख्सियात के दरमियान हालात पर तफसीली गुफ्तगू होती थी। इसी दौरान मुख्तलिफ कबाइल के सरदार, ताबेइन और अरब के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अफराद भी इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अपने मशवरे पेश करते। आखिरकार जब खतूत की तादाद हजारों तक पहुंच गई और कूफा वालों की जानिब से बार बार यकीनी दहानी कराई गई कि पूरा शहर आपके इंतजार में है, तब भी इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फौरन रवानगी का फैसला नहीं किया। लेकिन आखिर में एक ऐसा खत आ गया जिसके अल्फाज कुछ यूं थे कि ए हुसैन आज़म, अगर आप हमारे बुलावे पर तशरीफ न लाए और क़यामत के दिन हमसे ये सवाल हो गया कि तुमने यजीद जैसे फासिक की बैत कर ली, तो हम कूफा वाले कहेंगे कि ए अल्लाह, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को दावत दी थी। हमने तो उनको दिल से बुलाया था, हर तरफ से पैगाम भेजे थे, मगर वो तशरीफ न लाए। इसीलिए मजबूरी में हमने यजीद की बैत को कबूल कर लिया। अब ये बात हुसैन आज़म के दिल पर लग गई और आपने फरमाया, अगर कहीं क़यामत के रोज मौला मुझसे सवाल कर ले कि हुसैन तुम अहल थे खिलाफत के और लोग बुला भी रहे थे, तो तुमने लोगों को फासिक व फाजिक के हवाले छोड़कर मक्का में अमान क्यों ले लिया, तब मैं क्या जवाब दूंगा। हजरत इमाम हुसैन सारे लोगों के मशवरों को रखते हुए उठ जाते हैं। रमजान का महीना भी खत्म हुआ और अब हज का महीना निकल आया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि अब मुझे कूफा जाना चाहिए, लेकिन सहाबा किराम मना करते रहे, आपको अपनी राय मशवरा पेश करते थे। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने अपनी राय रखी कि आप अपने किसी खास को भेजें और अगर वो कह दें कि वहाँ के हालात ठीक हैं तो आप वहाँ तशरीफ ले जाएं, तो हमारे दिलों को भी तसल्ली हो जाएगी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हा ने उनके मशवरे को कबूल फरमाया और हालात की तहकीक के लिए अपने चचाजाद भाई और भरोसेमंद नुमाइंदे हजरत मुस्लिम बिन आकील रजी अल्लाहु अन्हु को कूफा रवाना करने का इरादा फरमाया, ताकि हकीकत मालूम हो सके कि खत में लिखी गई बातें किस हद तक दुरुस्त हैं। यहीं से वो मरहला शुरू होता है जिसने आगे चलकर तारीख को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। रवानगी से पहले आपने हजरत मुस्लिम बिन आकील रजी अल्लाहु अन्हु को वसीयत फरमाई कि कूफा पहुंचकर हालात का गौर से जायजा लें, लोगों के इरादों को परखें और फिर जो हकीकत हो उससे आगाह करें। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु भी इस अजीम जिम्मेदारी की अहमियत से वाकिफ थे। उन्होंने मक्का से रुखसती ली और रेगिस्तान की तपती राहों को पार करते हुए कूफा की जानिब रवाना हो गए। पूरे सफर में उनकी निगाह सिर्फ एक मकसद पर थी और वो था उम्मत के हालात की दुरुस्त तस्वीर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु तक पहुंचाना।
दूसरी जानिब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु सब्र के साथ अपने नुमाइंदे की खबर का इंतजार फरमा रहे थे। उस वक्त किसी को अंदाजा न था कि ये रवानगी तारीख के सबसे अहम वाक़यात में से एक की बुनियाद बनने जा रही है। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु कोफा तशरीफ लाए तो उनका ऐसा इस्तकबाल हुआ जिसे देखकर पहली नजर में यही महसूस होता था कि पूरा शहर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का मुंतजिर है। उस वक्त कूफा का इंतजामी निज़ाम हजरत नुअमान बिन बशीर रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ में था। वो सहाबी रसूल थे और अपनी नरमी, मुतानत, दानिशमंदी और खून खराबे से इज्तिनाब की वजह से मशहूर थे। कूफा उस दौर में एक ऐसा शहर बन चुका था जहां हर गली, हर बाजार और हर महफिल में सियासी गुफ्तगू जारी रहती थी। एक जानिब हजारों अफराद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आमद के मुंतजिर थे, दूसरी जानिब यजीद की हुकूमत के हामी भी मौजूद थे। ऐसे नाजुक हालात में हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु ने पूरी हिकमत के साथ अपना क़ियाम इख्तियार किया। शुरू में आप मुख्तार बिन अबी उबैद के मकान पर तशरीफ फरमा हुए। मुख्तार बिन अबी उबैद कूफा के एक मशहूर, असरो रसूख रखने वाले और अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले शख्स थे। कूफा के बहुत से अफराद उनकी इज्जत करते थे और उनकी मजलिसों में शिरकत किया करते थे। जब लोगों को मालूम हुआ कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु मुख्तार के मकान पर मौजूद हैं, तो गिरोह दर गिरोह अफराद वहां आने लगे। कोई बैत का इजहार करता, कोई वफादारी का यकीन दिलाता और कोई अर्ज करता कि कूफा पूरी तरह इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आमद का मुंतजिर है। बाद में हालात की नज़ाकत और अमनी मसालेह को देखते हुए हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु हानी बिन उर्वा के मकान पर मुंतकिल हो गए। हानी बिन उर्वा कूफा के बुजुर्ग, बासर और बेहद मुकर्रम सरदारों में शुमार किए जाते थे। उनके कबीले में उनकी बड़ी हैसियत थी और कूफा के बहुत से अफराद उनकी बात को एहतिराम की निगाह से देखते थे। इसी वजह से उनका मकान भी लोगों के इज्तिमा और मशवरे का मरकज बन गया। रोजीना सैकड़ों अफराद वहां हाजिर होते, हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत करते और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की नुसरत का अहद दोहराते। रिवायतों में आता है कि बैत करने वालों की तादाद हजारों तक पहुंच गई थी, जिससे जाहिर तौर पर ऐसा मालूम होता था कि पूरा कूफा इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की हिमायत में खड़ा है। नुअमान बिन बशीर रजी अल्लाहु अन्हु तक भी इन इज्तिमात की खबरें पहुंच रही थीं, मगर उनका मौकिफ ये था कि जब तक कोई खुली बगावत या फसाद जाहिर न हो, सिर्फ शक की बुनियाद पर तलवार नहीं उठाई जाएगी। उन्होंने मस्जिद में खुतबा देकर लोगों को फितने से बचने, इत्तेहाद कायम रखने और खून खराबे से दूर रहने की नसीहत की, मगर सख्ती और जबर का रास्ता इख्तियार नहीं किया। उनकी यही नरमी और एहतियात बाद में यजीद के दरबार में कमजोरी समझी जाने लगी और कूफा की बदलती हुई सूरत हाल एक ऐसे मोड़ की जानिब बढ़ने लगी जिसने आगे चलकर तारीख का रुख बदल देना था। इन तमाम मंजरों को देखकर हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु ने हालात का गौर से जायजा लिया और जो कुछ जाहिर तौर पर देख रहे थे उसे इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु तक पहुँचाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने मक्का मुकर्रमा एक तफसीली पैगाम रवाना किया। उस पैगाम में उन्होंने अर्ज किया कि यहाँ के लोग बार बार आपको बुला रहे हैं। बड़ी तादाद में अफराद बैत और वफादारी का इजहार कर चुके हैं और जाहिरी तौर पर हालात आपके हक में मालूम होते हैं। जब ये पैगाम मक्का पहुँचा तो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ा। आपके सामने एक जानिब कूफा वालों के हजारों खतूत थे, दूसरी जानिब आपके भरोसेमंद नुमाइंदे की तस्दीक मौजूद थी। आपने जल्दबाजी से काम न लिया बल्कि दुआ, तफक्कुर और मशवरे का सिलसिला जारी रखा। मगर अब हालात एक नए मरहले में दाखिल हो चुके थे। जाहिरी असबाब यही बताते थे कि कूफा में आपके लिए जमीन हमवार हो चुकी है। चुनांचे आपने सफर की तैयारी शुरू फरमाई। अहले बैत को आगाह किया गया, जरूरी इंतजामात मुकम्मल किए गए और धीरे धीरे मक्का की फजाओं में ये खबर फैलने लगी कि नवासे रसूल जल्द ही कूफा की जानिब रवाना होने वाले हैं। किसी को खुशी थी, किसी को फिक्र थी और किसी के दिल में एक अनजाना अंदेशा भी जाग रहा था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। उधर कूफा में जो कुछ हो रहा था उसकी खबरें एक एक करके दिमिश्क पहुंचने लगीं। यजीद को लगातार इत्तिलात मिल रही थीं कि कूफा के लोग हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के नाम पर जमा हो रहे हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैअतें हो रही हैं और शहर का मिजाज तेजी से बदल रहा है। शुरू में यजीद ने इन खबरों को मामूली समझा, मगर जब पैगामात का सिलसिला बढ़ा और उसे बताया गया कि हजारों अफराद हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं,
तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे खौफ हुआ कि अगर कोफा उसके हाथ से निकल गया तो हिराक का बड़ा हिस्सा उसकी हुकूमत से दूर हो सकता है। दरबार में मशवरे शुरू हुए। कुछ लोगों ने कहा कि नुअमान बिन बशीर रजी अल्लाहु अन्हु हालात संभाल नहीं पा रहे, जबकि कुछ ने उन्हें जरूरत से ज्यादा नरम करार दिया। यजीद के सामने बार बार यही तसव्वुर पेश किया गया कि अगर फौरन सख्त कदम न उठाया गया तो कूफा पूरी तरह इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की हिमायत में खड़ा हो जाएगा। यही वो लम्हा था जब दिमिश्क में बैठे हुक्मरानों ने फैसला किया कि अब कूफा में नरमी नहीं बल्कि सख्त इंतजामी कार्रवाई की जाएगी। इसी फिक्र और बेचैनी के आलम में यजीद ने एक ऐसा फैसला किया जिसने आगे चलकर तारीख का रुख बदल दिया। आखिरकार यजीद ने बसरा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद को बुलवाया। उबैदुल्लाह अपनी सख्ती, सियासी चालाकी और सख्त इंतजामी रवैये की वजह से मशहूर था। यजीद ने उसे हुक्म दिया कि बसरा के साथ साथ कूफा का इंतजाम भी अपने हाथ में ले और किसी भी कीमत पर हालात को अपने काबू में करे। उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने हुक्म मिलते ही सूरत हाल का जायजा लिया और समझ गया कि मामला सिर्फ एक शहर का नहीं बल्कि पूरी हुकूमत की सियासी बका का है। उसने फौरन रवाना होने की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी जानिब कूफा में अभी तक बहुत से अफराद यही समझ रहे थे कि हालात उनके हक में हैं और जल्द ही इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आमद होगी, मगर उन्हें अंदाजा न था कि दिमिश्क में उनके खिलाफ कैसी तदबीरें तय हो चुकी हैं। उबैदुल्लाह को साफ हिदायत दी गई कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु की तहरीक को जड़ से खत्म किया जाए, कूफा के सरदारों को अपने साथ मिलाया जाए और शहर को दोबारा हुकूमत के काबू में लाया जाए। इसी हुक्म के साथ एक नए और बेहद खतरनाक मरहले का आगाज हुआ। जब उबैदुल्लाह इब्न जियाद कूफा की सरहद के करीब पहुंचा तो उसने एक सियासी तदबीर इख्तियार की। मशहूर रिवायतों के मुताबिक वो आधी रात के वक्त आया था। शहर में खबर फैल गई कि शायद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु तशरीफ ले आए हैं। बहुत से अफराद रास्तों पर निकल आए और इस्तिकबाल के अल्फाज कहने लगे, मगर जब हकीकत खुली और लोगों को मालूम हुआ कि आने वाला शख्स हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु नहीं बल्कि उबैदुल्लाह इब्न जियाद है तो फजा का रंग बदल गया। शहर में दाखिल होते ही उसने दारुल इमारा का कब्जा लिया और छत पर खड़े होकर ऐलान किया, मैं खलीफाहुल मुस्लिमीन यजीद की तरफ से गवर्नर बनकर आया हूँ, अब तुम सब यजीद की बैत करो। लोगों में अफरा तफरी मच गई कि रातों रात ये सब कैसे हो गया। उसने सरदारों को तलब किया और सख्त लहजे में ऐलान किया कि हुकूमत के खिलाफ किसी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो शख्स यजीद की मुखालिफत करेगा या हुसैन इब्न अली रजी अल्लाहु अन्हु की हिमायत करेगा, उसकी जान, माल और हैसियत किसी भी वक्त खतरे में पड़ सकती है। उसने लोगों को खौफ व लालच दोनों के जरिए अपने काबू में लेना शुरू कर दिया। कूफा की वही गलियां जो कुछ रोज पहले उम्मीद और जोश से भरी हुई थीं, अब खौफ और बेचैनी की गिरफ्त में आने लगी। उबैदुल्लाह इब्न जियाद सिर्फ धमकियों पर इक्तिफा करने वाला न था। वो जानता था कि जब तक हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु मौजूद हैं, लोगों के दिलों में अहले बैत की हिमायत बाकी रहेगी। इसीलिए उसने जासूसों का एक पूरा निजाम कायम किया। मुख्तलिफ अफराद को माल और इनाम का लालच देकर शहर में फैला दिया गया ताकि पता लगाया जा सके कि मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु कहाँ क़ियाम फरमा है, कौन लोग उनसे मिलने आते हैं और कौन कौन उनके हामी हैं। रिवायतों में आता है कि उसका एक जासूस जो खुद को अहले बैत का मुहिब जाहिर करता था, लोगों के दरमियान घुल मिल गया और आखिरकार उसे मालूम हो गया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु हानी बिन उर्वा के मकान पर मौजूद हैं। ये खबर मिलते ही उबैदुल्लाह को वही मौका मिल गया जिसका उसे इंतजार था। अब उसका अगला निशाना सिर्फ मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु नहीं बल्कि वो शख्स भी था जिसने उन्हें पनाह दी हुई थी। जब उबैदुल्लाह को यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु हानी बिन उर्वा के मकान पर हैं, तो उसने फौरन एक चाल चली। हानी बिन उर्वा कूफा के बुजुर्ग, मुकर्रम और बेहद असरदार सरदार थे। उनकी इज्जत पूरे शहर में की जाती थी और उनके कबीले के हजारों अफराद उन पर जान छिड़कते थे। उबैदुल्लाह ने पहले तो नरमी से गुफ्तगू की गई, मगर जब हानी बिन उर्वा ने मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु का ठिकाना बताने से इनकार किया तो लहजा बदल गया। उन पर इल्जामात लगाए गए, सख्त गुफ्तगू की गई और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
कुछ रिवायतों में आता है कि उन पर तशद्दुद भी किया गया, जिससे वो जख्मी हो गए। उबैदुल्लाह ने हानी बिन उर्वा के साथ साथ कुछ और मुअज़्ज़िज़ खानदानों के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। हानी बिन उर्वा की गिरफ्तारी और कुफा के दूसरे असरदार अफराद पर सख्ती की खबर जैसे ही शहर में फैली, एकदम अफरा तफरी मच गई। जिन लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत की थी, उनके अंदर गुस्सा भी था और बेचैनी भी। कुफा की गलियों में ये चर्चा होने लगी कि अगर आज हानी बिन उर्वा जैसे बुजुर्ग और कबायली सरदार को इस तरह कैद किया जा सकता है, तो कल किसी के साथ भी यही सुलूक हो सकता है। इसी दौरान हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में अफराद जमा हो गए। तारीखी रिवायतों में आता है कि हजारों अफराद आपके साथ निकले और दारुल इमारह का घेराव कर लिया गया। उस वक्त ऐसा मालूम होता था कि पूरा कूफा हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु के साथ खड़ा है और उबैदुल्लाह इब्न जियाद की हुकूमत अब ज्यादा देर कायम नहीं रह सकेगी। मगर उबैदुल्लाह इब्न जियाद सिर्फ तलवार का आदमी नहीं था, बल्कि मक्र और दबाव का भी माहिर था। उसने उन कबायली सरदारों और असरदार अफराद को जो उसकी गिरफ्त में थे, दारुल इमारह की छत पर लाकर खड़ा कर दिया और धमकी दी कि अगर उन्होंने अपने अपने कबीलों को पीछे हटने का हुक्म न दिया तो उनका अंजाम बहुत संगीन होगा। अपनी जान और अपने खानदानों के खौफ से मजबूर होकर उन लोगों ने ऊंची आवाज में पुकारना शुरू किया, लौट जाओ, उबैदुल्लाह बहुत सख्त है, अपने घरों को वापस चले जाओ, शाम की फौजें आने वाली हैं, अगर तुम ठहरे रहे तो बड़ी हलाकत होगी। दूसरी जानिब हुकूमती कारिंदे भी गलियों में घूम घूम कर लोगों को डराने लगे। नतीजा ये हुआ कि जो इज्तिमा शुरू में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था, वो धीरे धीरे बिखरने लगा। कोई अपने अहलो अयाल की फिक्र में लौट गया, कोई अपनी जान के खौफ से पीछे हट गया और कोई कुबलाई सरदारों के हुक्म के आगे झुक गया। दारुल इमारह के इर्द गिर्द जमा हुआ हुजूम धीरे धीरे कम होने लगा। शुरू में किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि जो लोग सुबह तक जान देने के दावे कर रहे थे, वो शाम ढलते ढलते पीछे हटने लगेंगे। मगर उबैदुल्लाह इब्न जियाद की धमकियों, कबायली सरदारों के ऐलानात और शाम की फौजों के खौफ ने लोगों के दिल बदल दिए। हर थोड़ी देर बाद कोई न कोई गिरोह अपने घरों की जानिब लौट जाता। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु लोगों को देखते रहे, मगर किसी से शिकवा न किया। आपके चेहरे पर फिक्र जरूर थी, लेकिन सब्र और इस्तिकामत उससे कहीं ज्यादा थी। जब मगरिब का वक्त हुआ तो आपने नमाज अदा फरमाई। नमाज के दौरान भी कुछ अफराद मौजूद थे, मगर नमाज मुकम्मल होने के बाद जब आपने पीछे निगाह डाली तो मंजर बदल चुका था। जिन लोगों के हुजूम ने कुछ देर पहले पूरे कूफा को भर दिया था, उनमें से कोई नजर न आ रहा था। न कबायली सरदार, न बैत के दावे करने वाले अफराद और न वो लोग जो सुबह तक अपनी वफादारी के किस्में खा रहे थे। उस लम्हे कूफा की बेवफाई अपनी पूरी सूरत में सामने आ चुकी थी। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु अब उस शहर में तन्हा खड़े थे, जिसके हजारों खतूत ने उन्हें और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को यकीन दिलाया था कि पूरा कूफा उनके साथ है। नमाज के बाद आप खामोशी के साथ कूफा की गलियों में चल पड़े। रात की तारीकी धीरे धीरे फैल रही थी और शहर पर खौफ का साया छा चुका था। जिन दरवाजों पर कभी आपके इस्तिकबाल की बातें होती थीं, आज वहीं सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई दरवाजा खुलता न था, कोई आवाज देने की जुर्रत नहीं करता था। लोग अपने घरों में बंद होकर हालात का तमाशा देख रहे थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु कई गलियों से गुजरे, मगर हर जानिब वीरानी थी। दिन भर की मशक्कत, फिक्र और तन्हाई ने जिस्म को थका दिया था, मगर दिल में सबसे बड़ा दर्द लोगों की बेवफाई का था। आखिर एक मकान के सामने आप ठहर गए। दरवाजे के पास एक बुजुर्ग खातून खड़ी थी, जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। उन्होंने एक अजनबी मुसाफिर को देखा, जो बेहद थका हुआ और फिक्र में डूबा हुआ मालूम होता था। उन्होंने नरमी के साथ पूछा, आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्यों ठहरे हैं? हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु ने पहले अपनी पहचान छुपाई, मगर जब उनकी खुलूस भरी गुफ्तगू देखी तो अपना तारुफ करवाया और फरमाया कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। ये सुनते ही उस नेक खातून के दिल में अकीदत और एहतराम की कैफियत पैदा हो गई। वो नेक खातून तो आती, जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के सफीर खड़े हैं और पूरे शहर में तन्हा रह गए हैं, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के अपने मकान के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने अर्ज किया कि आप मेरे घर तशरीफ ले आइए, जब तक मेरी जान बाकी है आपको पनाह हासिल रहेगी। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु घर के अंदर तशरीफ ले गए। तोआ ने अदब और मोहब्बत के साथ पानी पेश किया, आराम की जगह फराहम की,
और आपकी खिदमत में जो कुछ मयस्सर था पेश कर दिया। सारी रात तवा का घर इबादत, फिक्र और दुआ की कैफियत में डूबा रहा। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु को अच्छी तरह एहसास हो चुका था कि हालात अब बहुत बदल चुके हैं। दूसरी जानिब तवा भी जानती थीं कि उनके घर में ठहरने वाली शख्सियत कोई आम मुसाफिर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी अमानत है। रात गुजरती रही मगर कूफा की तारीकी में आने वाला सवेरा एक और भी दर्दनाक वाकया अपने दामन में छुपाए हुए था, मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। मशहूर रिवायतों के मुताबिक तवा के बेटे को किसी वक्त मालूम हो गया कि उनकी वालिदा ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु को अपने घर में पनाह दे रखी है। उसके दिल में न वो अकीदत थी जो उसकी वालिदा के दिल में थी और न वो ज़ुर्रत के हक का साथ दे सके। उसने सुबह होने का इंतजार भी न किया और खुफिया तौर पर हुकूमती कारिंदों तक ये खबर पहुंचा दी। उधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद पहले ही हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु की तलाश में बेचैन था। जैसे ही उसे ठिकाने का इल्म हुआ उसके चेहरे पर इत्मीनान आ गया। फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि मकान का घेराव कर लिया जाए। तवा को जब इस राज के फाश होने का एहसास हुआ तो उनका दिल बैठ गया। एक जानिब मेहमान की अमानत थी, दूसरी जानिब जालिम हुकूमत की सख्ती, मगर अब हालात उनके इख्तियार से बाहर निकल चुके थे। कूफा की फजा में एक और दर्दनाक सुबह दस्तक देने वाली थी। सुबह की पहली रोशनी फैलते ही सिपाहियों के दस्ते तवा के मकान के इर्द गिर्द जमा होने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा मकान घेर लिया गया। तलवारों की छनक, घोड़ों की आहट और सिपाहियों की आवाजें चारों तरफ गूंजने लगीं। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु को जब हालात का इल्म हुआ तो आपने किसी खौफ या परेशानी का इजहार न किया। आप जानते थे कि अब इम्तिहान का आखिरी मरहला आ पहुंचा है। आपने अल्लाह की बारगाह में इस्तिकामत की इल्तिजा की। इसके बाद तलवार हाथ में लेकर बाहर तशरीफ लाए। सामने सैकड़ों मुसल्लह सिपाही मौजूद थे मगर आपके कदमों में कोई लर्जिश न थी। जब मुकाबला शुरू हुआ तो आपने ऐसी शुजाअत और बहादुरी का मुजाहिरा किया कि सिपाही दंग रह गए। एक के बाद एक हमले को आपने नाकाम बनाया और कई सिपाही जख्मी होकर पीछे हट गए। कूफा की गलियों में तलवारों की आवाज गूंजने लगी और हर देखने वाला आपकी दिलेरी पर हैरान था। मगर दूसरी जानिब दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। वो बार बार नए दस्ते भेजते रहे और घेराव को तंग करते गए। इसके बावजूद हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु आखिरी दम तक इस्तिकामत के साथ डटे रहे और साबित कर दिया कि अहले बैत के फिदाई तादाद नहीं बल्कि यकीन और सब्र के बल पर मैदान में उतरते हैं। मगर आखिरकार जिस्मानी थकावट, जख्मों की कसरत और चारों जानिब से किए जाने वाले हमलों ने असर दिखाना शुरू कर दिया। रिवायतों में आता है कि लड़ाई के दौरान आप जख्मी हो गए थे और खून बहने की वजह से जिस्म कमजोर हो चुका था। दुश्मनों ने जब देखा कि मैदान में मुकाबले से काम नहीं बन रहा तो उन्होंने मक्र और चालाकी का सहारा लिया। चारों तरफ से घेराव और सख्त कर दिया गया। आखिर एक मरहला ऐसा आया जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त भी आपके चेहरे पर न शिकस्त का असर था और न खौफ का। आपकी निगाहों में वही इस्तिकामत और वही यकीन झलक रहा था जो शुरू से आपका शियार था। गिरफ्तारी के बाद आपको कूफा के दारुल इमारह की जानिब ले जाया गया। रास्ते भर लोग तमाशाई बनकर देखते रहे। कुछ अफराद की आंखों में शर्म थी कि जिन्होंने बैत के दावे किए थे आज वही अपने रहनुमा को तन्हा छोड़ चुके थे। मगर हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु खामोश रहे और अल्लाह की रजा पर राजी नजर आए। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु को दारुल इमारह में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो वहाँ एक सख्त और तनाव भरा मंजर था। गुफ्तगू के दौरान उबैदुल्लाह ने सख्त लहजा इख्तियार किया मगर हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु ने पूरे वकार और जुरत के साथ जवाब दिए। आपने किसी किस्म की माफी, नरमी या डर का इजहार न किया। आपने साफ तौर पर बता दिया कि आपका मकसद फसाद या खून खराबा नहीं था बल्कि उन लोगों के दावों और दावत पर आना था जिन्होंने बार बार इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया था। उबैदुल्लाह चाहता था कि आप कमजोरी दिखाएं मगर हर जवाब उसकी उम्मीद के बरक्स मजबूती और इस्तिकामत का आईना था। वहाँ मौजूद अफराद भी देख रहे थे कि जिस्म जख्मी हो सकता है मगर हक पर कायम रहने वाला दिल नहीं टूटता। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु को एहसास हो गया कि अब शहादत का वक्त करीब है तो आपकी फिक्र अपनी जान के लिए नहीं बल्कि अमानतों और जिम्मेदारियों के लिए थी। सबसे बड़ी फिक्र हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की थी जो कूफा वालों के बुलावे पर सफर में थे या सफर शुरू करने वाले थे। आपने कोशिश की कि किसी भरोसेमंद जरिए से पैगाम पहुंचा दिया जाए कि कूफा की सूरत हाल पूरी तरह बदल चुकी है। जिन लोगों ने वफादारी के दावे किए थे वो बिखर चुके हैं और अब यहाँ कोई वैसा सहारा बाकी नहीं रहा
जैसा खुतूत में बयान किया गया था। उस वक्त भी आपकी जबान पर अपने लिए राहत की दरख्वास्त नहीं थी, बल्कि उम्मत और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की सलामती की फिक्र थी। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु को जब दारुल इमारा की छत पर ले जाया गया तो जिस्म जख्मों से चूर था, मगर हौसला अब भी बुलंद था। कूफा की फजाओं पर खौफ का साया छाया हुआ था और वो लोग जो कुछ ही रोज पहले वफादारी के दावे करते थे, अपने घरों में दुबके बैठे थे। रिवायतों में आता है कि शहादत से पहले आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, इस्तिगफार किया और अपने मौला की जानिब रुजुआ फरमाया। दिल में यही दर्द था कि काश किसी तरह पैगाम पहुंच जाए और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को मालूम हो जाए कि कूफा की सूरतें हाल बिल्कुल बदल चुकी हैं। मगर अब वक्त बहुत कम रह गया था। आखिरकार मलऊन उबैदुल्लाह इब्न जियाद के हुक्म पर आपको शहीद कर दिया गया। फिर आपके पाक जिस्म मुबारक को छत से नीचे गिराया गया और कूफा वालों पर खौफ बिठाने के लिए आपकी शहादत को इबरतनाक अंदाज में पेश किया गया। ये मंजर बेहद दर्दनाक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के सफीर, अहले बैत के वफादार खादिम और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के भतीजे ने तन्हाई में मगर इस्तिकामत के साथ अपनी जान कुर्बान कर दी। आपकी शहादत के साथ ही कूफा की बेवफाई खुलकर सामने आ गई और करबला के आने वाले फितना अंगेज वाकयात की बुनियाद और ज्यादा वाज़ेह हो गई। आपकी शहादत सिर्फ एक फर्द की शहादत नहीं थी, बल्कि वो पहला बड़ा सदमा था जिसने आगे चलकर करबला की दर्दनाक दास्तान का दरवाजा खोल दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के फौरन बाद हजरत हानी बिन उर्वा को भी कैद खाने से बाहर निकाला गया। बुजुर्गी की हालत थी, जिस्म जख्मों से चूर था, मगर हौसला बुलंद था और चेहरा सब्र व इस्तिकामत की तस्वीर बना हुआ था। उन्हें कूफा के बाजार की जानिब ले जाया गया, जहां जालिम हुक्मरानों ने उनके कत्ल का फैसला सुना दिया। हजरत हानी बिन उर्वा ने आखिरी लम्हों में भी कोई कमजोरी जाहिर न की, फिर बेरहमी के साथ उन्हें शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के साथ कूफा की फजा और भी गमगीन हो गई और हक के दो बड़े हामी एक ही दिन उम्मत से जुदा हो गए। दूसरी तरफ सन 60 हिजरी मक्का मुकर्रमा में हज का मौसम करीब आ चुका था और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले हुज्जाज हरम की फजाओं को आबाद कर रहे थे। इसी दौरान हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु तक ये इत्तलात पहुंची कि यजीद ने कुछ अफराद को मक्का रवाना किया है और खतरा है कि हरम की मुकद्दस सरजमे में भी खून खराबा किया जा सकता है। हुसैन आजम रजी अल्लाहु अन्हु जानते थे कि बैतुल्लाह की हुर्मत तमाम दुनिया के मुसलमानों पर लाजिम है। आप हरगिज ये गवारा नहीं कर सकते थे कि आपकी वजह से हरम की पाकीज़ा फजा में तलवार उठे या काबा मुशर्रफा की हुर्मत पर आंच आए। चुनांचे आपने हज को मुकम्मल करने के बजाय उसे उम्रा में तब्दील फरमा दिया और फौरन सफर की तैयारी का हुक्म दे दिया। 8 ज़िलहिज्जा 60 हिजरी, जिसे यौम तरवियह कहा जाता है, उसी रोज हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने अहले बैत और रुफका के साथ मक्का से रवाना हुए। उस वक्त तक आपको हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत की खबर नहीं पहुंची थी और न ही कूफा वालों की बेवफाई की हकीकत मालूम थी। काफिले में अहले बैत की मुकद्दस हस्तियां मौजूद थीं, जिनमें हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर, हजरत कासिम बिन हसन, हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरे अफराद शामिल थे। काफिला जब मक्का से रवाना हुआ तो हर निगाह अदब और अकीदत से इस मुबारक घराने को देख रही थी। लोगों को मालूम था कि ये कोई आम मुसाफिर नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुकद्दस खानदान है जिसकी हर अदा दीन की अमानत और हक की निशानी है। इसी यकीन और तवक्कुल के साथ काफिला कूफा की जानिब रवाना हो गया, जबकि आगे आने वाले वाकयात से अभी कोई वाकिफ न था। रास्ते में कूफा की जानिब सफर के दौरान कई अहम वाकयात पेश आए। सबसे पहले मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु से मुलाकात की और कूफा के हालात के बारे में अपनी राय पेश की। कुछ अफराद ने अर्ज किया कि कूफा वालों पर पूरा एतमाद न किया जाए, क्योंकि उनका माजी वफादारी से ज्यादा बेवफाई के वाकयात से भरा हुआ है। मगर दूसरी जानिब लगातार आने वाले खतूत और हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु का पहले भेजा गया पैगाम मौजूद था, जिसमें कूफा के लोगों की बैत और हिमायत का जिक्र था। इसी वजह से सफर जारी रहा। सफर के दौरान एक मशहूर मकाम पर आपकी मुलाकात फरजदक नामी मशहूर शायर से हुई। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उससे कूफा के हालात मालूम किए तो उसने अर्ज किया कि लोगों के दिल आपके साथ हैं, मगर उनकी तलवारें बनी उमैया के साथ हैं।
یہ جملہ بعد میں تاریخ کے سب سے مشہور جملوں میں شمار ہوا۔ اس کے باوجود ابھی تک حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر قافلے تک نہیں پہنچی تھی۔ پھر سفر آگے بڑھتا رہا۔ آخر منزل زبالہ پر پہنچ کر آپ کو یقینی طور پر معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور حضرت ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور کوفہ کا نظام پوری طرح عبید اللہ ابن زیاد کے قبضے میں جا چکا ہے۔ ساتھ ہی کوفہ والوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے۔ یہ خبر سن کر قافلے پر گہرا غم چھا گیا۔ اہل بیت کی آنکھیں نم ہو گئیں اور سفر کا رنگ بدل گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ خبر پہنچی تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے گہرا افسوس ظاہر کیا اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو لوگ صرف دنیاوی امیدوں کی وجہ سے ساتھ آئے ہیں وہ چاہیں تو واپس لوٹ سکتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد کچھ لوگ جو راستے میں آپ کے ساتھ آ گئے تھے وہ الگ ہو گئے، مگر اہل بیت اور وفادار رفقا ڈٹے رہے۔ یہیں سے کربلا کی داستان کا سب سے حساس اور دردناک مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ زبالہ سے آگے بڑھے تو اب حالات پہلے جیسے نہ رہے تھے۔ اس دردناک خبر کے باوجود آپ صبر، وقار اور توکل کے ساتھ سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک اہم موڑ آیا جب حر ابن یزید تمیمی لگ بھگ 1000 سواروں کے لشکر کے ساتھ سامنے آ پہنچا۔ یہ لشکر عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر روانہ کیا گیا تھا تاکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے پر نظر رکھی جا سکے۔ جب دونوں قافلے آمنے سامنے ہوئے تو سخت گرمی اور ریگستان کی شدت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ حر کے سواروں اور ان کے گھوڑوں تک کو پانی پلایا جائے۔ پیاس سے نڈھال لوگوں کو پانی دیا گیا اور اس طرح اہل بیت کی کرم نوازی اور اخلاق کا ایک اور روشن منظر سامنے آیا۔ حر نے قافلے کو روک لیا، مگر اس وقت اسے جنگ کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے نہ کوئی لڑائی ہوئی اور نہ تلواریں کھینچیں۔ البتہ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو آزادانہ طور پر کوفہ داخل نہیں ہونے دے گا اور اسے آگے کے احکام کا انتظار ہے۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو نماز کی تیاری کی گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے امامت فرمائی اور حر ابن یزید سمیت اس کے تمام سواروں نے بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حر کے سامنے کوفہ والوں کے بھیجے ہوئے خطوط پیش کیے اور فرمایا کہ مجھے تم لوگوں نے دعوت دے کر بلایا ہے، اگر اب تمہاری رائے بدل چکی ہے اور تم مجھے نہیں چاہتے تو میں اسی جگہ لوٹ جاؤں گا جہاں سے آیا ہوں۔ حر نے جواب دیا کہ اسے ان خطوط کے بارے میں کوئی علم نہیں اور اس کا کام صرف حکم کی پیروی کرنا ہے۔ اس کے بعد کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر حر نے کوفہ کا راستہ بند کر دیا اور مدینہ کی جانب واپسی کی بھی کھلی اجازت نہ دی۔ چنانچہ قافلہ ایک دوسری جانب چل پڑا۔ اب سفر کا رخ بدل چکا تھا اور سب لوگ عبید اللہ ابن زیاد کے اگلے فرمان کا انتظار کر رہے تھے۔ یہی وہ نازک مرحلہ تھا جہاں سے قافلہ دھیرے دھیرے اس سرزمین کی جانب بڑھنے لگا جسے دنیا بعد میں کربلا کے نام سے پہچاننے والی تھی۔ اسی دوران عبید اللہ ابن زیاد کا نیا حکم حر تک پہنچا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو ایسی جگہ روک دیا جائے جہاں نہ کوئی مضبوط قلعہ ہو، نہ پانی کی بڑی سہولت اور نہ کسی شہر کا آسرا۔ حکم ملتے ہی حر نے قافلے کی راہ روک لی اور عرض کیا کہ اب یہیں ٹھہرنا ہوگا۔ اسی دوران 2 محرم 61 ہجری کو قافلہ فرات کے قریب ایک کھلی اور ویران سرزمین پر پہنچا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس مقام پر قافلہ رکا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے عرض کیا نینوا، کسی نے کہا غازریہ، پھر ایک اور نام بتایا گیا۔ آخر جب عرض کیا گیا کہ اس مقام کو کربلا بھی کہا جاتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من الکرب والبلا، یعنی اے اللہ میں کرب یعنی غم اور بلا یعنی آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہی وہ سرزمین معلوم ہوتی ہے جس کا ذکر پہلے سے کیا جاتا رہا ہے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنی ہوئی کچھ باتوں کو یاد فرمایا اور سمجھ گئے کہ اب سفر اپنے آخری اور سب سے نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اہل بیت نے اپنے خیموں کے لیے جگہ مقرر کی، اونٹوں سے سامان اتارا گیا، بچوں اور خواتین کو آرام کی جگہ دی گئی اور خیمے نصب کیے گئے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ
और दूसरे रुफका इंतजामात में मशगूल हो गए। जाहिर तौर पर यह एक आम पड़ाव मालूम होता था, मगर हकीकत में यही सरजमे आने वाले दिनों में सब्र, वफा, कुर्बानी और इस्तिकामत की सबसे अजीम दास्तान की गवाह बनने वाली थी। उस वक्त तक किसी को तफसील से मालूम न था कि आगे क्या होने वाला है, मगर दिलों पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। रेगिस्तान की खामोशी, फुरात की नजदीकी और चारों तरफ फैली हुई वीरानी जैसे आने वाले वाकयात की खबर दे रही थी। इस तरह 2 मुहर्रम 61 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का मुबारक काफिला करबला की सरजमी पर ठहर गया और तारीख का एक नया बाब शुरू हो गया। 3 और 4 मुहर्रम के दौरान करबला की फजा में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने उमर इब्न साद को एक बड़ा लश्कर देकर करबला रवाना किया। रिवायतों में आता है कि उमर इब्न साद 4000 सवारों के साथ करबला पहुंचा और उसने आते ही अपना पड़ाव अहले बैत के मुकाबिल कायम कर लिया। अब हालात पहले से कहीं ज्यादा नाजुक हो चुके थे। इसके बावजूद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने बातचीत का दरवाजा खुला रखा। मुख्तलिफ रिवायतों में आता है कि आपने अपने पैगामात के जरिए ये बात पहुंचाई कि अगर कूफा वाले अपनी राय बदल चुके हैं तो मैं वापस लौट जाता हूँ, या सरहदी इलाकों की जानिब चला जाता हूँ, या फिर सीधे यजीद से बात कर लेता हूँ। मकसद सिर्फ इतना था कि मुसलमानों का खून बहने से बच जाए। मगर कूफा का निजाम अब उबैदुल्लाह इब्न जियाद के हाथ में था और वो किसी ऐसी सुलह पर राजी न था जिससे मामला अमन के साथ खत्म हो जाए। दूसरी जानिब अहले बैत के खैमों में इबादत, तिलावत और दुआ का सिलसिला जारी था। 5 मुहर्रम तक दुश्मन के लश्करों की तादाद में लगातार इजाफा होने लगा। कूफा से आने वाले नए दस्ते करबला पहुंचते और उमर इब्न साद के लश्कर में शामिल होते जाते। मैदान में चारों तरफ हथियार बंद सवार दिखाई देने लगे थे। दूसरी जानिब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के साथियों की तादाद बेहद मुख्तसर थी, मगर ईमान, वफादारी और यकीन में वो पहाड़ों की तरह मजबूत थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की तमाम कोशिश यही थी कि आखिरी लम्हे तक सुलह और अमन की कोई सूरत निकल आए। रिवायतों में आता है कि कई बार दोनों जानिब से पैगामात का तबादला हुआ, मगर हर बार बात वहीं आकर रुक जाती कि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु यजीद की बैत कबूल कर लें, जबकि आप इसे अपने ज़मीर और दीन के खिलाफ समझते थे। 6 मुहर्रम तक करबला का मैदान एक मुकम्मल लश्करगाह की सूरत इख्तियार कर चुका था। उमर इब्न साद के पास लगातार नई कुव्वत पहुंच रही थी और उबैदुल्लाह इब्न जियाद की जानिब से सख्त हिदायतें आ रही थीं। अब दबाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। इसके बावजूद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु पूरी मुतानत और वकार के साथ हालात का सामना कर रहे थे। आप बार बार लोगों को अपना नसब याद दिलाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता बयान करते और फरमाते कि गौर करो मैं कौन हूँ और किस मकसद से यहाँ आया हूँ। मगर सियासी दबाव और दुनिया की मोहब्बत ने बहुत से दिलों को बदल दिया था। दूसरी जानिब अहले बैत के खैमों में सब्र और यकीन की एक अजीब कैफियत थी। कोई कुरान की तिलावत कर रहा था, कोई दुआ में मशगूल था और कोई अल्लाह की बारगाह में आने वाले इम्तिहान के लिए मदद तलब कर रहा था। 7 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन करबला की दास्तान में एक बहुत दर्दनाक और अहम मोड़ लेकर आया। इससे पहले तक फुरात का दरिया अहले बैत के खैमे से कुछ फासले पर मौजूद था और लोग किसी न किसी तरह पानी हासिल कर लेते थे। लेकिन इसी रोज उबैदुल्लाह इब्न जियाद की जानिब से उमर इब्न साद के पास सख्त पैगाम पहुंचा कि हुसैन इब्न अली रजी अल्लाहु अन्हु और उनके साथियों पर पानी की रसद बंद कर दी जाए। मशहूर तारीखी रिवायतों के मुताबिक इसके बाद अम्र इब्न हज्जाज की सरबराही में सवारों और मुहाफिजों का एक गिरोह फुरात के किनारे तैनात कर दिया गया ताकि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के खैमे तक पानी न पहुंच सके। ये फैसला सिर्फ एक जंगी इक़दाम नहीं था, बल्कि खैमे में मौजूद मर्दों, खवातीन और मासूम बच्चों के लिए एक बेहद सख्त आजमाइश की इब्तिदा थी। जब पानी की राहें मसदूद होने लगीं, तो खैमों के अंदर बेचैनी फैलने लगी। छोटे बच्चे प्यास की शिद्दत महसूस करने लगे, मशकें खाली होने लगीं और हर शख्स हालात की संगीनियत को समझने लगा। मगर इन मुश्किल लम्हात में भी इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का सब्र, वकार और तवक्कुल कम न हुआ। आप अपने साथियों को तसल्ली देते, अल्लाह की रजा की तरफ मुतवज्जह करते और सब्र की तलकीन फरमाते रहे। दूसरी जानिब उमर इब्न साद की फौज में भी ऐसे अफराद मौजूद थे जो अहले बैत के मुकाबले इस सख्ती को देखकर
दिल्ली बेचैनी महसूस कर रहे थे, लेकिन हुक्म और सियासी दबाव की वजह से खामोश थे। करबला की तपती हुई रेत पर सूरज की हर किरण प्यास की शिद्दत को और बढ़ा रही थी। 8 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में प्यास की आजमाइश और ज्यादा शदीद हो चुकी थी। 7 मुहर्रम को फुरात का पानी बंद किए जाने के बाद अब दूसरा दिन था और खैमों के अंदर मौजूद अहले बैत, साथी, खवातीन और मासूम बच्चे इस सख्त इम्तिहान का सामना कर रहे थे। मशकों में मौजूद पानी लगभग खत्म हो चुका था और फुरात का दरिया सामने होते हुए भी पहुंच से बाहर कर दिया गया था। तपता हुआ रेगिस्तान, मुहर्रम की गर्म फजा और चारों तरफ दुश्मन के पहरे इस तकलीफ को और बढ़ा रहे थे। बच्चों की प्यास से भरी सदाएं सुनाई देने लगी थीं। कोई बच्चा अपनी वालिदा से पानी मांगता, कोई सूखे होठों पर जबान फेरता और कोई खामोशी से अपने बड़ों के चेहरे देखता कि शायद अब पानी आ जाए। मगर हालात हर गुजरते लम्हे के साथ और मुश्किल होते जा रहे थे। इन नाजुक लम्हात में भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का सब्र और इस्तिकामत देखने लायक थी। आप अपने साथियों को जमा करते, उन्हें अल्लाह की रजा और सब्र की तलकीन फरमाते और याद दिलाते कि मोमिन की असल कामयाबी अल्लाह की खुशनुदी में है। दूसरी जानिब उमर इब्न साद की फौज की तादाद लगातार बढ़ रही थी। मुख्तलिफ कबीलों के गिरोह करबला पहुंचते जा रहे थे और मैदान में फौजी जमावड़ा बढ़ता जा रहा था। इसके बावजूद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की जानिब से जंग की कोई इब्तिदा न हुई, बल्कि आप आखिरी वक्त तक अमन और सुलह की राह तलाश करते रहे। 9 मुहर्रम 61 हिजरी, जिसे तारीख में यौम तासुआ के नाम से भी याद किया जाता है, करबला की दास्तान का एक बेहद अहम और अतर अंगीज दिन था। इस दिन तक उमर इब्न साद की फौज की तादाद बहुत बढ़ चुकी थी और करबला का मैदान हर जानिब से घेर लिया गया था। अहले बैत के खैमों में कई रोज से पानी की शिद्दत मौजूद थी, मगर इसके बावजूद किसी के लहजे में शिकवा न था। दोपहर के बाद और खुसूसन शाम के करीब हालात ने एक नया रुख इख्तियार किया। उमर इब्न साद ने अपनी फौज को आगे बढ़ने और जंग की तैयारी का हुक्म दिया। जब खैमों की जानिब हरकत नजर आई तो हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के हुक्म से आगे बढ़े और मालूम किया कि मामला क्या है। जवाब मिला कि उबैदुल्लाह इब्न जियाद का हुक्म आ चुका है और अब या तो बैत की जाए या जंग के लिए तैयार रहा जाए। ये पैगाम सुनकर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फौरन जंग शुरू करने के बजाय एक रात की मोहलत तलब की। आपने फरमाया कि मुझे एक रात और दे दी जाए ताकि मैं अपने रब की इबादत कर सकूं, नमाज अदा कर सकूं, कुरान की तिलावत कर सकूं और दुआ व इस्तिगफार में मशगूल रहूं। मशहूर तारीखी रिवायतों के मुताबिक ये मोहलत मंजूर कर ली गई और जंग अगले दिन तक मुलतवी कर दी गई। जब रात उतर आई तो करबला के मैदान की कैफियत बिल्कुल अलग थी। एक जानिब हजारों का लश्कर था और दूसरी जानिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का छोटा सा काफिला। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और एक बेहद असर अंगेज खिताब फरमाया। मशहूर रिवायतों के मुताबिक आपने अल्लाह की हम्द के बाद फरमाया कि मैं अपने साथियों से ज्यादा वफादार और बेहतर साथी नहीं जानता। फिर आपने उन्हें इजाजत दी कि अगर कोई जाना चाहे तो अंधेरे का फायदा उठाकर चला जाए, क्योंकि दुश्मनों का मकसद सिर्फ मेरी जात है। मगर ये सुनकर आपके जानिसार साथियों ने एक जबान होकर अपनी वफादारी का ऐलान किया। हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत कासिम इब्न हसन रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरे अंसार व अहले बैत ने अर्ज किया कि हम आपको छोड़कर हरगिज नहीं जा सकते। उन्होंने अपनी जानें तक कुर्बान कर देने का आज़म दोहरा दिया। उस रात करबला के खैमों में एक अजीब रूहानी मंजर था। कहीं नमाज अदा की जा रही थी, कहीं कुरान की तिलावत हो रही थी, कहीं दुआ और मुनाजात का सिलसिला था। तारीखी रिवायतों में आता है कि सारी रात इबादत, जिक्र और तिलावत की आवाजें खैमों से बुलंद होती रहीं। हर शख्स जानता था कि सुबह क्या लेकर आने वाली है, लेकिन किसी के कदमों में लर्जिश न थी। अहले बैत के अफराद भी सब्र और रजा की कैफियत में थे। 9 मुहर्रम की रात इसी तरह इबादत, वफादारी, सब्र और यकीन के साथ गुजरी। ये रात करबला की सबसे यादगार रातों में से एक बनी, क्योंकि इसी रात हक और बातिल के दरमियान आखिरी मरहले से पहले अहले बैत और उनके साथियों ने अपने रब की बारगाह में पूरी तरह खुद को सुपुर्द कर दिया। एक जानिब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के खैमे थे, जहां इबादत, तिलावत और सब्र का नूर चमक रहा था, और दूसरी जानिब दुश्मन का लश्कर था, जहां तलवारें तो मौजूद थीं मगर कई दिलों में बेचैनी भी घर कर चुकी थी। उन्हीं खैमों में एक शख्स सारी रात किसी गहरी सोच में डूबा बैठा था। उसे चैन नहीं आ रहा था। बार बार उसका दिल उससे सवाल करता था कि आखिर कल क्या होने वाला है। क्या सचमुच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के मुकाबिल तलवार उठाई जाएगी?
क्या क़ियामत के दिन इस जवाबदेही से बचा जा सकेगा? वो बेचैनी कोई मामूली बेचैनी न थी, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के मुकाबिल खड़े होने की बेचैनी थी। वो शख्स हुर्र इब्न यजीद रजी अल्लाहु अन्हु थे, वही हुर्र जिन्होंने कुछ रोज पहले इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के काफिले को रोकने का हुक्म पूरा किया था। वही हुर्र जिनकी वजह से काफिला कूफा की जानिब जाने के बजाय करबला की सरजमी पर ठहर गया था, मगर अब उनका ज़मीर उन्हें मलामत कर रहा था। एक तरफ दुनिया थी, ओहदा था, हुकूमत का खौफ था, और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का मुकद्दस काफिला था। आशूरा की सुबह तुलू हुई तो करबला की रेत पर एक अजीब सी खामोशी तारी थी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी का वो दिन आ चुका था जिसका इंतजार कई रोज से दोनों लश्कर कर रहे थे। फजर का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों के साथ नमाज अदा फरमाई। नमाज के बाद आपने अपने हाथ बारगाहे इलाही में उठाए और दर्द भरी दुआ की। मशहूर रिवायतों में आता है कि आपने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, हर मुश्किल में तू ही मेरा सहारा है, हर मुसीबत में मेरी उम्मीद सिर्फ तुझी से वाबस्ता है। चारों तरफ मौत के साए मंडरा रहे थे, मगर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि तवक्कुल, सब्र और रजा की कैफियत नजर आती थी। खैमों में मौजूद अहले बैत भी इबादत, दुआ और जिक्र में मशगूल थे। ऐसा महसूस होता था मानो करबला की सरजमी पर रहने वाला हर जर्रा इस आने वाली अजीम कुर्बानी का गवाह बनने की तैयारी कर रहा हो। इसके बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने साथियों के दरमियान तशरीफ लाए और एक निहायत असर अंगेज खिताब फरमाया। आपने अल्लाह की हम्द और सना बयान की, फिर अपने जानिसार साथियों की तरफ देखकर फरमाया कि मैंने तुम लोगों से ज्यादा वफादार, मुखलिस और बेहतर साथी नहीं देखे। आपने अहले बैत का जिक्र फरमाया और उनके सब्र को सराहा, फिर नसीहत करते हुए फरमाया कि हर हाल में अल्लाह से जुड़े रहो, सब्र को थामे रखो और हक पर कायम रहो। इसके बाद आप दुश्मन की फौज के मुकाबिल तशरीफ ले गए और उन्हें आखिरी मर्तबा समझाने की कोशिश फरमाई। आपने बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ लोगो, जरा गौर करो मैं कौन हूँ, क्या मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा नहीं हूँ? फिर आपने अपना नसब याद दिलाया, अहादीस सुनाई और फरमाया कि अगर अब तुम मुझे नहीं चाहते तो मैं वापस लौटने को भी तैयार हूँ। मगर हक की ये सदाएं बहुत से दिलों तक पहुंचकर भी असर न कर सकीं। कुछ लोगों की आंखें झुक गईं, कुछ दिल कांप उठे, मगर दुनियावी खौफ ने उन्हें खामोश कर दिया। उधर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की ये गुफ्तगू हुर्र इब्न यजीद रजी अल्लाहु अन्हु के दिल पर बिजली बनकर गिर रही थी। रिवायतों में आता है कि आशूरा की सुबह उनके जिस्म पर लर्जा तारी था। उनके एक साथी ने पूछा, तुम तो कूफा के बहादुर सवारों में शुमार होते हो, आज तुम्हें क्या हो गया? हुर्र ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़ा पा रहा हूँ और मैं जन्नत के अलावा किसी चीज को इख्तियार नहीं करूँगा। इतना कहकर उन्होंने अपने घोड़े को मोड़ा और तेजी से इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के खैमे की जानिब बढ़ चले। जब वो बारगाहे हुसैनी में पहुंचे तो उनका सर शर्म से झुका हुआ था। उन्होंने अर्ज किया, या इब्न रसूलिल्लाह, मैं वही हूँ जिसने आपका रास्ता रोका था, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फौरन फरमाया, हाँ, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाए। ये सुनते ही हुर्र की आंखों से अश्क जारी हो गए और उनका दिल सुकून से भर गया। तौबा की दौलत हासिल करने के बाद हुर्र रजी अल्लाहु अन्हु मैदान में उतरे। अब उनका जज्बा बिल्कुल बदल चुका था। वो अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के लश्कर की जानिब बढ़े और बुलंद आवाज में पुकारने लगे, ए अहले कूफा, तुम पर अफसोस है, तुमने खुद खतूत लिख लिख कर इब्ने रसूल को बुलाया और आज उन्हीं के मुकाबिल तलवारें लेकर खड़े हो। क्या तुम नहीं देखते कि ये कौन है? क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का खून बहाना चाहते हो? हुर्र बार बार उन्हें समझाते रहे, मगर जिन दिलों पर दुनियावी खौफ और लालच का पर्दा पड़ चुका था, उन पर इन बातों का कोई असर न हुआ। कुछ लोग सर झुकाए खड़े रहे, मगर किसी में हक का साथ देने की जुर्रत न थी। जब तमाम हुज्जत मुकम्मल हो गई और समझाने की हर कोशिश नाकाम हो गई, तब उमर इब्न साद ने अपनी फौज की सफ़ियां दुरुस्त कराईं। फिर मशहूर रिवायतों के मुताबिक उसने अपनी कमान से पहला तीर छोड़ा और कहा, अमीर के पास गवाही देना कि सबसे पहला तीर मैंने चलाया है। उसके साथ ही चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। करबला की खामोश फजा अचानक घोड़ों की टापों, तलवारों की झंकार और तीरों की सनसनाहट से गूंज उठी। इस तरह आशूरा के दिन जंग का बाकायदा आगाज हो गया। जंग शुरू होते ही हुर्र रजी अल्लाहु अन्हु ने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की बारगाह में अर्ज किया कि अब मुझे सबसे पहले मैदान में जाने की इजाजत दी जाए।
ताकि मैं अपनी पिछली कोताही का कुछ कफ़ारा अदा कर सकूं। इजाजत मिलने पर वो शेर की तरह मैदान में उतरे। अब उनके दिल में सिर्फ एक तमन्ना थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर अपनी जान निछावर कर देना। उन्होंने ऐसी शुजाअत और बहादुरी दिखाई कि दुश्मन की सफ़ों में हलचल मच गई। आखिरकार चारों तरफ से घेर लिए गए, जख्मों से चूर होकर जमीन पर गिरे और फिर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उनके सरहाने तशरीफ लाकर वो जुमला फरमाया जो क़यामत तक उनकी फजीलत का उन्वान बन गया। तुम वैसे ही हुर्र हो जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम रखा था, दुनिया में भी आज़ाद और आखिरत में भी आज़ाद। जंग की इब्तिदा के बाद सबसे पहले इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के अंसार और जानिसार साथी मैदान में उतरे। ये वो खुश नसीब अफराद थे जिन्होंने रात ही को अपने इमाम से वादा कर लिया था कि आखिरी सांस तक साथ निभाएंगे। उनमें बुजुर्ग भी थे, जवान भी और ऐसे लोग भी थे जो बद्र, उहुद और दूसरे मराहिल में सहाबा की सोहबत पा चुके थे। एक एक करके वो मैदान में जाते और दुश्मन का मुकाबिला करते और शहादत का जाम पीते गए। हजरत मुस्लिम बिन औसजा रजी अल्लाहु अन्हु उन अव्वलीन शुहदा में से थे जिनकी शहादत का जिक्र तारीख में मिलता है। जब वो जख्मी होकर जमीन पर गिरे तो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु खुद उनके पास तशरीफ लाए। इसी तरह हबीब इब्न मज़ाहिर रजी अल्लाहु अन्हु जो बुजुर्ग सहाबी और अहले बैत के मुखलिस मुहिब्ब थे, बड़ी बहादुरी से लड़े और शहादत पाई। करबला की रेत इन वफादारों के खून से रंगीन होती जा रही थी, मगर हर शहादत के साथ हक की आवाज और बुलंद हो रही थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने हर साथी की शहादत पर रंज फरमाते, उनके लिए दुआ करते और उन्हें जन्नत की बशारत देते। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के अंसार और जानिसार साथी एक एक करके शहादत का जाम पी चुके और करबला की रेत उनके खून से रंगीन हो चुकी, तब अहले बैत की जानिब से मैदान में उतरने का मरहला आया। मशहूर रिवायतों के मुताबिक अहले बैत के जवानों में सबसे पहले हजरत अली अकबर इब्न हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने इजाजत तलब की। हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के फर्जंद ही नहीं थे, बल्कि शक्ल सूरत, अखलाक, गुफ्तगू और चाल ढाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबहत रखते थे। जब भी अहले बैत को अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती तो वो अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु के चेहरे को देख लिया करते थे। यही वजह थी कि उनका मैदान में जाने का लम्हा इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के लिए बेहद दर्दनाक था। जब हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि अब मुझे भी इजाजत दी जाए, तो एक लम्हे के लिए करबला की फजा जैसे ठहर गई। एक बाप अपने जवान बेटे को देख रहा था और एक बेटा अपने इमाम और वालिद की खिदमत में खड़ा था। इजाजत मिलने के बाद हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार हुए। रिवायतों में आता है कि उस वक्त इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने आसमान की जानिब निगाह उठाई और दर्द भरे दिल के साथ अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, गवाह रहना, अब मेरी जानिब से वो जवान मैदान में जा रहा है जो खलक और खुलक में तेरे रसूल से सबसे ज्यादा मुशाबहत रखता है। ये अल्फाज एक बाप के दिल का वो दर्द थे जिसे लफ्जों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु मैदान में पहुंचे और पूरे वकार, शुजात और इस्तिकामत के साथ मुकाबिला किया। दुश्मन के कई अफराद उनके हाथों पछाड़े गए। करबला का मैदान उनकी बहादुरी देख रहा था, मगर लड़ाई लंबी होती गई और गर्मी, प्यास और लगातार जंग की वजह से जिस्म कमजोर होने लगा। रिवायतों में आता है कि एक मौके पर वो वापस खैमे की जानिब आए और अर्ज किया कि प्यास की शिद्दत बहुत बढ़ चुकी है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें सब्र की तलकीन फरमाई और जन्नत की नेमतों की बशारत दी। फिर अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु दोबारा मैदान की जानिब रवाना हुए। इसके बाद जंग और सख्त हो गई। आखिरकार दुश्मन के एक वार ने उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। रिवायतों में आता है कि जख्म लगने के बाद उन्होंने अपने वालिद को पुकारा। ये आवाज सुनते ही इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु बेचैन होकर मैदान की जानिब दौड़े। जब आप अपने जवान बेटे के पास पहुंचे तो देखा कि अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु जख्मों से चूर जमीन पर मौजूद हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने फर्जंद का सर अपनी गोद में रखा। अश्क आंखों से जारी थे, मगर जबान पर सब्र था। कुछ ही लम्हों बाद हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु ने शहादत का जाम पिया और अपने रब से जा मिले। करबला की रेत पर एक और हाशिमी चिराग बुझ गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने प्यारे बेटे के जिस्म के पास मौजूद थे और अहले बैत के खैमों में गम की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। करबला की दास्तान में हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत उस अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है जिसमें दीन की खातिर एक बाप ने अपने जवान बेटे तक को अल्लाह की राह में पेश कर दिया।
हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद करबला का मंजर और भी दर्दनाक हो गया। अब अहले बैत के दूसरे जवान एक एक करके मैदान में उतरने लगे। हर एक की तमन्ना बस यही थी कि वो अपने नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अपनी जान निसार कर दे। हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु के बाद बनी हाशिम के कई जवान मैदान में उतरे, जिनमें हजरत ओन इब्न जाफर, हजरत मोहम्मद इब्न जाफर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम, हजरत मोहम्मद इब्न अबी सईद, हजरत अबू बकर इब्न अली, हजरत उस्मान इब्न अली, हजरत जाफर इब्न अली और दूसरे हाशिमी अफराद शामिल थे। ये सब वो नूरानी चेहरे थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से तल्लुक रखते थे। कोई भतीजा था, कोई भांजा था, कोई भांजे का बेटा था और कोई सगे भाई का फर्जंद था, मगर उस दिन रिश्तों से बढ़कर दीन का हक अदा करना मकसूद था। करबला की तपती हुई रेत पर जब भी कोई हाशिमी जवान मैदान में जाने की इजाजत लेने आता, इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का सीना गम से भर जाता। कोई आगे बढ़ता तो खैमों से सिसकियों की आवाजें बुलंद हो जाती। बहनें, बेटियां और अहले बैत की खवातीन पर्दे के पीछे से अपने लालों को आखिरी बार देखती, मगर सब्र का दामन हाथ से न छोड़ती। ये कोई मामूली माएँ न थीं, बल्कि वो पाक बीबियां थीं जिन्होंने अपनी मोहब्बत से ज्यादा अल्लाह की रजा को अजीज रखा। दिल टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, आंखें अश्कबार थीं, मगर जबानों पर शिकवा न था। तारीख आज भी उन पाक माओं के जज्बे, उनके सब्र और उनकी आजीम कुर्बानी को सलाम करती है, जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को हक और सच्चाई की राह में मुस्कुराते हुए रवाना किया। करबला की तपती हुई रेत पर एक एक करके अहले बैत के जवान अपनी जाने हक की राह में निसार कर चुके थे। खैमों में अब बच्चों की प्यास और सिसकियां ज्यादा सुनाई देने लगी थीं। 3 रोज से फुरात का पानी बंद था। नन्हे नन्हे बच्चे मशकों की तरफ देखते, मगर उनमें एक खतरा भी न था। ऐसे में हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाहु अन्हु की नजर बीबी सकीना रजी अल्लाहु अन्हा पर पड़ी। रिवायतों में आता है कि बच्चों की प्यास ने उनके दिल को बेचैन कर दिया। वो बारगाह हुसैनी में हाजिर हुए और अदब से अर्ज किया कि अगर इजाजत हो तो फुरात से पानी लाने की कोशिश करूं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु जानते थे कि अब्बास सिर्फ भाई नहीं बल्कि लश्कर हुसैनी का सहारा और परचमदार हैं, मगर बच्चों की हालत भी सामने थी। आखिर इजाजत मिल गई। हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार हुए। हाथ में अलम था और दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश कि किसी तरह बच्चों तक पानी पहुंच जाए। जब वो मैदान में निकले तो दुश्मन की सफ़ों में हलचल मच गई। हर तरफ से निगाहें उसी शेर अली पर टिक गईं। वो बढ़ते गए, तलवार चलती गई और रास्ते खुलते गए। जो सामने आता पीछे हट जाता। आखिर वो दरिया के किनारे पहुंच गए। कई रिवायतों में आता है कि आपने पानी तक रसाई हासिल कर ली। झुककर पानी हाथ में लिया, मगर उसी लम्हे प्यासी सकीना, अहले बैत की ख़वातीन और खैमों में तड़पते बच्चों का तस्वुर सामने आ गया। आपने पानी वापस दरिया में छोड़ दिया और फरमाया कि जब मौला और उनके बच्चे प्यासे हैं तो अब्बास पानी कैसे पी सकता है। फिर मश्क भरी और वापस खैमों की जानिब रुख किया। अब दुश्मन समझ चुका था कि अगर अब्बास पानी लेकर पहुंच गए तो उनका मंसूबा नाकाम हो जाएगा। लिहाजा चारों तरफ से घेराव कर लिया गया। तीरों और वारों की बारिश शुरू हो गई। रिवायतों में मशहूर है कि पहले एक बार से आपका दाहिना बाजू जख्मी होकर जुदा हो गया, मगर मश्क को बचाने की फिक्र में आपने उसे दूसरे हाथ से संभाल लिया। फिर दूसरा बाजू भी निशाना बना। अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु के जिस्म से खून बह रहा था, मगर मश्क अब भी बच्चों की अमानत बनी हुई थी। तभी एक तीर मश्क पर लगा और पानी जमीन पर बिखर गया। पानी गिरते ही ऐसा लगा जैसे अब्बास के दिल पर तीर चल गया हो, क्योंकि वो अपनी प्यास के लिए नहीं बच्चों की प्यास बुझाने निकले थे। जख्मों से चूर हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु आखिरकार घोड़े से जमीन पर आ गए। करबला की तपती रेत पर पड़े हुए उन्होंने पुकारा, या मौला या अखी। ये आवाज सुनते ही इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु दौड़ते हुए पहुंचे। जब भाई ने भाई को उस हालत में देखा तो गम से दिल भर आया। रिवायतों में आता है कि हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि मौला मैं बच्चों के लिए पानी न ला सका। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु उनके सरहाने बैठे रहे। करबला की रेत उस मंजर की गवाह थी जहां वफा, इखलास और कुर्बानी अपनी इंतहा पर पहुंच चुके थे। फिर हजरत अब्बास आलमदार रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने रब की बारगाह में हाजिरी दी और शहादत का जाम नोश फरमा लिया। हजरत अब्बास आलमदार रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद करबला का गम और भी गहरा हो गया। अब खैमों में प्यास की शिद्दत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। बच्चों के होंठ खुशक थे, आंखें बुझी बुझी सी थीं और हर तरफ सिसकियों की आवाजें गूंज रही थीं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु जब खैमों की जानिब लौटे तो अहले बैत की निगाहें उनके चेहरे पर टिक गईं। सब समझ चुके थे कि अब्बास भी अपने रब से जा मिले हैं। उसी आलम में एक नन्ही सी सिसकी ने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का दिल हिला दिया।
ہم یہ آپ آپ کے کے ہاتھ سب سے پر چھوٹے بیعت صاحبزادے کریں، ہم آپ کا حضرت ساتھ علی دیں گے۔ اصغر رضی امام اللہ حسین رضی اللہ عنہ عنہ تھے، جن نے کی عمر جلد بازی نہیں مشہور کی، روایتوں کے حالات کی مطابق تحقیق کے لیے لگ بھگ 6 اپنے ماہ چچیرے تھی۔ بھائی ننھا بچہ مسلم کئی بن روز کی عقیل پیاس سے رحمہ تڑپ اللہ رہا کو تھا، کوفہ کبھی روانہ کروٹ کیا۔ بدلتا، کبھی مسلم اپنے بن خشک عقیل ہونٹ رحمہ ہلاتا، اللہ جب مگر کوفہ دودھ بھی پہنچے خشک ہو تو چکا تھا۔ ہزاروں لوگوں اس کی نے حالت ساتھ دیکھ دینے کر کا پتھر وعدہ دل بھی کیا۔ پگھل جائے۔ ایسا لگتا تھا امام کہ حسین پورا رضی اللہ کوفہ عنہ نے امام حسین اپنے رضی لختے اللہ جگر کو عنہ گود میں کے اٹھایا۔ ساتھ کھڑا ہے، اس وقت لیکن کربلا یہ کی ظاہر ریت، تھا، خاموش حقیقت آسمان نہیں۔ اور جب فرات عبید کا اللہ کنارہ بن سب زیاد گواہ کوفہ تھے پہنچا کہ ایک تو باپ خوف اپنے پھیلایا معصوم گیا، بچے کو لے دباؤ کر ڈالا گیا، دشمن کی اور فوج کے وہی لوگ سامنے جا پیچھے رہا ہٹ ہے۔ گئے جو آپ وفاداری میدان میں کے تشریف دعوے لائے اور کرتے تھے۔ ننھے علی اصغر مسلم بن عقیل رضی اللہ رحمہ اللہ عنہ کو اپنے تنہا ہاتھوں رہ پر گئے، بلند کر پھر کے انہیں فرمایا، گرفتار کر اگر کے تمہارے شہید نزدیک کر حسین دیا کا کوئی گیا۔ قصور ہے ادھر تو امام مجھ سے حسین جنگ رضی کرو، اللہ اس عنہ معصوم نے سفر تمہارا میں کیا تھے۔ بگاڑا ہے؟ راستے میں اگر مجھ مسلم پر بن رحم نہیں عقیل کرتے تو رحمہ کم اللہ از کی کم اس بچے شہادت کو کی ایک خبر گھونٹ پانی دے دو۔ یہ کچھ بے حد لمحوں کے لیے میدان دردناک پر لمحہ سناٹا تھا۔ چھا گیا، لیکن بہت سے قافلہ لوگ اس رکا منظر نہیں، کو دیکھ کر سفر بے چین ہو جاری اٹھے۔ رہا۔ ایک راستے معصوم میں حر جو بن اپنی یزید گردن بھی اپنے ٹھیک سے دستے نہ کے سنبھال ساتھ آئے سکتا تھا، اور پیاس قافلے سے کو تڑپ روک رہا تھا، لیا۔ مگر دو بدنصیبی محرم دیکھیے کہ رحم کے 61 بجائے یہ ظلم کا قافلہ فیصلہ ایک کیا گیا۔ میدان میں پہنچا۔ عمر ابن اس سعد کے میدان کا لشکر نام میں تھا موجود ہرملہ ابن کاہل خیمے میں لگا دیے 3 گئے۔ پھل والا تیر دوسری چلایا۔ طرف فوجوں وہ کی تیر تعداد ہوا کو بڑھتی چیرتا گئی ہوا اور آیا پھر اور فرات ننھے کے علی پانی تک اصغر رسائی بند رضی کر دی اللہ عنہ کے پیاس گلے میں بڑھنے جا لگی۔ لگا۔ ایک خیموں لمحے میں میں بچے سب کچھ پانی بدل مانگتے گیا۔ تھے، امام عورتیں حسین بے رضی چین اللہ تھیں، عنہ کی گود لیکن میں موجود امام حسین معصوم رضی بچے کا اللہ خون عنہ پھوٹ نکلا۔ اور ان کے کربلا ساتھی کی ریت صبر بھی کے جیسے ساتھ کانپ اٹھی۔ ڈٹے رہے۔ ایک باپ 9 اپنے محرم 6 کی ماہ رات کے بچے کو سینے امام سے لگائے حسین رضی کھڑا تھا اللہ عنہ اور نے اس کا اپنے لخت ساتھیوں جگر کو جمع اس کے کیا۔ ہاتھوں میں فرمایا، تڑپتے تڑپتے دشمنوں کی خاموش ہو دشمنی چکا تھا۔ مجھ سے ہے، حضرت جو جانا امام چاہے حسین چلا رضی اللہ جائے، عنہ میں اسے نہیں نے اپنے روکوں گا، دونوں ہاتھوں میں وہ لیکن خون کوئی لیا نہ گیا۔ اور آسمان کی حضرت جانب عباس اچھال رضی دیا۔ اللہ عنہ پھر نے صبر کہا، کے ساتھ ہم آپ کو اپنے چھوڑ رب کر کی نہیں بارگاہ جائیں میں گے۔ عرض کیا علی اکبر کہ جو رحمہ کچھ اللہ ہو نے رہا کہا، ہے ہم وہ اللہ حاضر کی ہیں۔ نظر کے سامنے ایک ہو ایک رہا ساتھی نے ہے اور یہی وفاداری کا بات یقین میرے لیے دلایا۔ اس مصیبت اس کو رات آسان خیموں کر میں دیتی قرآن ہے۔ کی پھر آپ اس تلاوت ننھے ہوئی، جنازے کو لے دعائیں کر کی خیموں جا کی رہی طرف لوٹے۔ ہر اہل دل بیت کی اپنے رب خواتین کی نے طرف جب دیکھا متوجہ تھا۔ کہ علی اصغر 10 محرم رضی اللہ یوم عنہ عاشورہ، اب اس دنیا میں وہ نہیں دن رہے جسے تو اسلامی خیموں میں تاریخ غم کی کبھی لہر نہیں دوڑ بھول گئی۔ سکتی۔ پھر آپ نے اپنے مقابلہ ہاتھوں شروع سے ہوا۔ خیمے کے قریب امام حسین ایک چھوٹی رضی سی اللہ قبر عنہ تیار کے کی اور ساتھی اپنے ایک لخت ایک کر جگر کے کو میدان سپرد میں خاک اترتے فرما گئے۔ دیا۔ سب سے لیکن وہ پہلے حسین حر ہیں بن یزید جن کے لبوں رحمہ اللہ پر کا نمبر اس وقت آیا۔ بھی کوئی وہی شکوہ نہیں جو بلکہ کوفے کی صبر اور فوج رضا کی کے طرف فاس سے تھے امام اور حسین دل رضی اللہ اللہ کی عنہ مشیت کا پر راستہ راضی تھا۔ روکنے آیا تھا۔ کربلا کی جنگ کے تپتی ہوئی دوران ان ریت کے پر دل ایسا میں معلوم اتھل ہوتا تھا پتھل کہ مچ اب گئی۔ غم کی وہ انتہا سوچنے ہو لگے، چکی ہے، ایک مگر طرف ابھی سب سے دنیا ہے، دردناک ایک طرف منظر باقی آخرت تھا۔ ہے، امام ایک حسین طرف رضی یزید اللہ کی فوج عنہ ہے، کچھ ایک لمحوں طرف کے لیے نواسۂ خاموش رسول کھڑے صلی رہے، اللہ چاروں علیہ طرف نظر وسلم۔ دوڑائی۔ اور جہاں پھر کبھی حر ان کے بن جانثار یزید نے ساتھی وہ کھڑے فیصلہ تھے کیا وہاں اب جو شہداء قیامت کے تک جسم یاد تپتی رکھا ریت جائے پر گا۔ موجود تھے۔ وہ اپنا جہاں گھوڑا کبھی موڑ اہل کر بیت کے امام جوانوں حسین کی رضی آوازیں اللہ گونجتی عنہ کے تھیں سامنے وہاں اب خاموشی کانپتے تھی۔ ہوئے کہا، اس کے بعد میں نے امام آپ کا حسین راستہ رضی روکا اللہ تھا، عنہ میں خیموں کی تائب جانب ہوں، کیا تشریف میری لائے۔ توبہ یہ وہ قبول لمحے ہوگی؟ تھے جن کو امام بیان حسین کرتے رضی ہوئے اللہ دل عنہ کانپ نے اٹھتا ہے۔ فرمایا، آپ نے ہاں، خیمے میں اللہ داخل ہو کر تمہاری اپنی توبہ بہن حضرت قبول زینب فرمائے گا۔ رضی اور اللہ پھر عنہا حر کو بن دیکھا۔ یزید بہن اسی بھائی میدان کی میں آنکھوں میں شہید دیکھ ہوئے۔ رہی تھی اور دشمن بھائی کی بہن طرف کی سے آنکھوں نہیں، میں دونوں امام سمجھ حسین رہے تھے رضی کہ اب اللہ جدائی عنہ کا کی وقت طرف سے۔ آ پہنچا ان ہے۔ کے بعد امام حضرت حسین علی رضی اکبر اللہ رحمہ عنہ نے اللہ فرمایا، میدان میں اے اترے، زینب میرے جو بعد صورت صبر اور کا دامن سیرت میں ہاتھ سے رسول نہ اللہ چھوڑنا، صلی اللہ بچوں کا علیہ خیال وسلم رکھنا، سے کسی سب سے حال میں زیادہ اللہ سے ملتے شکوہ نہ جلتے کرنا۔ تھے۔ یہ انہوں نے سن کر بہادری سے حضرت جنگ زینب کی رضی اور اللہ عنہا شہادت کی کا آنکھوں جام سے دیا۔ اشک بہہ پھر نکلے حضرت مگر عباس انہوں نے رضی صبر کو اللہ تھامے عنہ رکھا۔ پھر جو بی بی سکینہ علمبردار رضی اللہ کربلا عنہا اپنے کہلاتے بابا ہیں، سے لپٹ پانی گئی۔ لینے کئی روز فرات کی کی طرف پیاس گئے۔ شہید
होने दोनों वालों हाथ का काट गम दिए और अब गए, बाबा की लेकिन जुदाई, मशक एक दांतों से मासूम थामे दिल रहे। ये सब फिर शहीद कैसे हुए। बर्दाश्त करता। फिर बीबी हजरत सकीना अली बार असगर बार अपने रहमहुल्लाह, बाबा का दामन जो पकड़ अभी लेती हैं और शीरखार कहती बच्चे थे, हैं, बाबा वो अब हम भी किसके तीर का सहारे निशाना रहेंगे। बने। इमाम एक-एक हुसैन करके रजी अल्लाह 72 अन्हु ने शहीद अपनी हुए। बेटी को सीने से करबला की लगाया, रेत उसके उनके माथे खून को से चूमा रंगती और चली उसे गई। सब्र की फिर वो तलकीन लम्हा फरमाई। आया खैमों में जब मौजूद इमाम हर हुसैन आंख रजी अश्कबार अल्लाहु थी, अन्हु हर दिल लगभग टूट अकेले चुका रह था, गए। मगर वो इमाम मैदान हुसैन जंग में रजी उस अल्लाहु शुजाअत अन्हु के के साथ चेहरे उतरे पर अजीब जो सा उनके सुकून नाना था, जैसे रसूलुल्लाह उन्हें अपने रब सल्लल्लाहु से अलैहि मिलने की वसल्लम खुशी हो। और उनके आपने वालिद आखिरी हजरत बार अली अहले रजी बैत अल्लाहु को अन्हु सलाम की किया, निशानी फिर थी। अपने घोड़े तारीखी जुलजनाह पर रिवायतों में सवार आता होकर है मैदान कि की जब भी जानिब दुश्मन बढ़ का कोई गए। दस्ता मैदान में उनकी पहुंचकर तरफ आपने बढ़ता, दुश्मन को वो आखिरी उन पर बार इस हक की तरह तरफ टूट बुलाया, पड़ते कि मगर दुश्मनों जवाब में के तीर, कदम नीज़े उखड़ और जाते। तलवारें मिली। इब्न इसके बाद कसीर जंग शुरू हो रहमहुल्लाह गई। लिखते प्यास से हैं कि निढाल उन्होंने होने के इस जंग में बावजूद अकेले इमाम हुसैन 50 से रजी ज्यादा अल्लाहु दुश्मनों को अन्हु शिकस्त ऐसी दी और शुजाअत के मैदान से साथ लड़े पीछे कि धकेले। बड़े बड़े सूरमा दुश्मन हैरत में सीधे पड़ उनके गए। सामने कोई आने से आता कतराते तो थे, पीछे हट जाता, इसीलिए कोई उन पर हमला चारों करता तो तरफ से जवाब तीर पाता। बरसाए करबला जाते की थे। रेत पर अकेला सामने से हुसैन मुकाबला हजारों करने पर की भारी उनमें पड़ रहे हिम्मत थे, न थी। मगर आखिरकार जिस्म हर पर तरफ एक से के घेर बाद लिए गए। एक जख्म जिस्म लगते गए, मुबारक पर जख्म लेकिन हर बढ़ते जख्म के गए, तीर बाद वो लगे, दोबारा नेज़े उठते, लगे, तलवारों के दोबारा वार डटते, हुए। प्यास ने दोबारा पहले ही जिस्म को रिवायतों कमजोर में कर आता दिया है था, कि फिर दुश्मन भी के ज़बान पर लश्करियों ने अल्लाह भी का आपस जिक्र में जारी कहा, था। इस एक तरह वक्त लड़ते आया हुए जब हमने आप घोड़े कभी से कोई नहीं जमीन पर देखा। आ गए। फिर आपने वो सजदे की आखिरी हालत लम्हा में अपने रब से चारों तरफ मुनाजात की दुश्मन और थे, हर हाल में जिस्म उसकी पर रज़ा पर अनगिनत राजी जख्म रहने थे। का इजहार किया। रिवायतों में दुश्मनों आता के है कि दिलों में उन्होंने जरा उस भी वक्त रहम न भी था। आवाज
वो उस हस्ती क्या के कोई करीब आ है जो रहे मेरी थे मदद जिसके करे? बारे में क्या कोई रसूलुल्लाह है जो अहले बैत सल्लल्लाहु की अलैहि हिफाजत वसल्लम करे? फरमाया लेकिन करते उस कि मैदान में हुसैन उनकी मुझसे पुकार है सुनने और वाला मैं कोई हुसैन न से था। हूँ। मगर दुश्मनों दुनिया के की तीर मोहब्बत और ने नेज़े उनकी उन पर आंखों को बरसते अंधा रहे। कर दिया था। और वो फिर हर मलम ज़र्ब के शिमर बाद आगे भी बढ़ा अल्लाह और का आपकी नाम मुबारक लेते रहे। गर्दन पर पै यहाँ दर तक पै कि वो वार किया। ज़मीन पर इस आए लम्हे और ने उनके आसमान को आखिरी रुला दिया, अल्फाज में जमीन को अल्लाह हिला की दिया हम्द थी। और तारीख को शिकवा हमेशा के लिए बदल दिया। घबराहट नहीं, रसूलुल्लाह सिर्फ सल्लल्लाहु सुकून और अलैहि तस्कीन। वसल्लम का प्यारा 10 नवासा मुहर्रम हजरत 61 फातिमा हिजरी ज़हरा को रज़ी अल्लाहु इमाम अन्हा का हुसैन लख्त रज़ी जिगर अल्लाहु अली अन्हु मुर्तज़ा शहीद कर रज़ी दिए अल्लाहु अन्हु का इन्ना शेर दिल लिल्लाहि बेटा व करबला इन्ना की रेत इलैहि पर राजिऊन। शहीद हो गया। उस शहादत वक्त के सूरज बाद वहीं था, अहले बैत की आसमान वहीं था, ख़वातीन और जमीन बच्चों वहीं को थी, कैद मगर करके दुनिया कूफा ले बदल जाया चुकी थी। गया। खैमों की लेकिन जानिब से करबला का उठती हुई पैगाम सिस्कियां वहीं फजा खत्म में नहीं गूंज हुआ। रही थीं। ये बीबी पैगाम ज़ैनब रज़ी आज भी अल्लाहु जिंदा अन्हा है। का दिल टूट सब्र चुका का था। पैगाम, बीबी सकीना रज़ी इस्तिकामत का अल्लाहु अन्हा पैगाम अपने बाबा और को ये पुकार पैगाम रही थीं और कि करबला तौबा की की राह रेत कभी अपने बंद सीने नहीं पर होती। इंसानियत की यही सबसे करबला अजीम है, कुर्बानी यही को उसका समेटे सबक है। खामोश पड़ी थी। अल्लाह यही वो ताला मंजर इमाम था हुसैन जिसने रज़ी क़यामत अल्लाहु तक के लिए अन्हु, हक और अहले बातिल बैत के और दरमियान तमाम फर्क को रोशन शुहदाए कर दिया। करबला से हुसैन राज़ी रज़ी हों। अल्लाहु अन्हु शहीद हो गए, मगर उनका पैगाम, उनका सब्र, उनकी कुर्बानी और उनका नाम हमेशा के लिए जिंदा हो गया। लेकिन